وہ دنیا کا انوکھا انسان تھا جو 9 برس بعد اپنے ملک اپنے شہر لوٹنے کے باوجود ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں بیٹھا وقت کو آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر پہنچنے کی جلدی نہیں تھی۔ ایک لمبی جدائی کے بعد اپنوں سے ملنے کی بےتابی، خوشی، جوش جیسے سارے احساسات منجمد تھے، یا کسی انجانے ڈر نے انہیں سرد کر رکھا تھا۔ اس کے اندر بس ایک خوف تھا اور کوفت تھی۔ کاؤنٹر سے تیسری کافی لے کر واپس میز پر آیا تو فون کی مخصوص آواز پر اس کا دل لمحہ بھر کو بند ہوا۔ اس شہر میں پہلی دفعہ اس کا فون گنگنایا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال لہرایا، کیا پتہ یہیں کسی نے اسے یاد کیا ہو۔ اسے فون کی اسکرین روشن کی، کسی پیغام کے بجائے وہ اشارہ دفتر سے موصول ہوئے ای میل کا تھا۔ فون واپس رکھتے ہوئے وہ رک گیا، خود کو روکتے روکتے بھی۔ وہ ایک بار پھر وہ چند الفاظ پڑھ رہا تھا جنہیں دہرانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں رہا تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو، تم نے کہا تھا میں تم سے کچھ بھی منوا سکتی ہوں، تو ایک بار آ جاؤ، بڑے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی اور ساکے بھائی اسے بلا بلا کر اور سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ وہ ضد اور غصہ ختم کر کے ہمیشہ کے لیے نہ صحیح کم سے کم ایک بار تو باپ سے ملنے آ جائے۔ اور رہی اس کی بات، تو یہ منوانے والا خیال تو 9 سالوں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا۔ مانا کہ اس کی اپنی ضد اور باپ سے ٹھنی سرد جنگ 9 برس بعد بھی جاری تھی، لیکن اب اس رن میں وہ ولولہ نہیں رہا تھا جو 9 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ خود بھی اب 9 برس قبل جیسا سر پھرا نہیں رہا تھا، البتہ تب سے اب تک ویسا ہی تھا۔ وہ اس کا دل تھا اور اس میں بیٹھا ڈر کہ اسے اس کی مان لینا پڑے گی۔ اسے فون بند کر کے سیاہ کافی کو دیکھا جس کی تلخی اس کے اندر گھلی تلخیوں سے بہت کم تھی۔ وہ سب سوئے ملتے اور وہ نہیں چاہتا تھا اتنے وقت بعد وہ اپنی آمد سے سب کی نیند خراب کرے۔ وہ ایک شخص کی وجہ سے پہلے ہی سارے گھر کو بہت تنگ کر چکا تھا۔ اسے کافی ختم کی اور بیگ گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ سو جائیں بڑی امی، تالا میں لگا دوں گی۔ وہ نزلہ زکام سے تنگ تھیں، دوا کھانے کے بعد ان کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں اس سے چھپی نہیں تھیں۔ ارے تمہارے بڑے ابا سونے دیں گے مجھے؟ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جب تک سن نہ لیں گیٹ کو تالا لگا دیا ہے۔ نہ خود سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں۔ جب بھی رات میں ساکی بھائی گھر نہ ہوتے، بڑے ابا کو گیٹ مقفل کرنے کی ایسی ہی فکر ہوتی تھی۔ آپ چلے، میں آ کر ان سے کہہ دیتی ہوں۔ اس نے آخری رکابی کو کھنگال کر رکھا۔ ہاں کہہ دو ذرا، تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی ہے انہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کمرے کی طرف چل پڑیں۔ روزانہ مغرب کے بعد ڈیری والا دودھ دے جاتا تھا۔ آج اسے فون کیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا، اسی کے انتظار میں اب تک گیٹ کھلا تھا، ورنہ رات کا کھانا ہوتے ہی بڑی امی گیٹ مقفل کر کے فارغ ہو جاتی تھیں۔ اسے گیلے ہاتھ خشک کیے، ایپرن اتارا اور بڑے ابا کے کمرے میں آئی۔ بڑے ابا، بڑی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آج لاک میں لگا دوں گی، بس دودھ والا آ جائے۔ اس نے دروازے میں رک کر کہا، اسے فون کرو، اگر 10 منٹ میں آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ کہو صبح دے جائے اور لاک لگا دو۔ ان کے لیے زیادہ چلنا پھرنا تو کافی دنوں سے آسان نہیں رہا تھا۔ ایک بار بستر پر آ جاتے تو ان سب کی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں پھر کمرے سے نکلنا نہ پڑے۔ ہال سے گزر کر پورچ کے چند زینے اترنا چڑھنا اور صحن عبور کر کے گیٹ تک جانا، پھر واپس آنا ان کے لیے خاصی مشقت تھی جو پچھلے مہینے سے مکمل بند ہو گئی تھی۔ جی، وہ ان کی بات مان کر پلٹ گئی، باورچی خانے کی بتی بجھائی اور فون لیے باہر آئی۔ اسے امی کو بھی فون کرنا تھا، پہلے گڈو سے بات کر لوں پھر امی کو لگاتی ہوں۔ اسے سوچتے ہوئے دودھ پہنچانے والے بچے کو فون کیا۔ دوسری سمت رنگ ہوتی رہی، کسی نے اٹھایا نہیں، شاید راستے میں ہو۔ وہ وہیں صحن میں ٹہلنے لگی۔ بھابھی اور بچوں کے بنا کتنا سونا لگ رہا ہے گھر۔ بچے اور بھابھی چھٹیاں گزارنے ننیال میں تھے اور ساکی بھائی کل ہی انہیں لینے گئے تھے۔ وہ امی کو فون لگا رہی تھی کہ گیٹ کی دوسری طرف آہٹ ابھری۔ کتنی دیر کر دی تم نے؟ اسے گیٹ پوری طرح طاقت سے اپنی طرف کھینچا، مگر سامنے موجود ودیع کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا اور وہ گونگی ہو گئی۔ وہ جو اب تک خود سے قبول کرتے جھجک رہا تھا کہ کس لیے واپس آیا ہے، اس پل ایمانداری سے مان لیا کہ وہ اسی کی خاطر یہاں موجود تھا جو دیر سے آنے کی شکایت کر رہی تھی۔ ان کے درمیان حائل وقت کی دیوار کا سایہ دونوں کے چہروں پر پڑا تھا۔ وہ اب دبلا پتلا جھنجھلایا اور اکھڑ سا لڑکا نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑھے وزن اور داڑھی مونچھ کے اضافے کے ساتھ وہ ایک سلجھا ہوا پروکار ذمہ دار مرد نظر آ رہا تھا۔ چنچل تبسم اور شوخ تاثرات سے خالی طوبہ اسے اپنی امی اور چچی کا پرتو لگی، سب کی فکر میں بھاگتی دوڑتی اور وقت پر کام نپٹانے کی فکر میں ڈوبی عورت۔ جس گھر میں ابا ہوں وہاں کے مکین اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کڑوا سا خیال ابھر کر ڈوبنے سے پہلے اسے ملال میں مبتلا کر گیا، اور اسے اس گھر میں قید کرنے والے تم ہو۔
سنجیدگی کے علاوہ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، دبلی پتلی سیاہ گہری آنکھوں والی سلونی، جس نے اس کے اندر ایک نئی دنیا آباد کی تھی۔ طوبا نے یوں سینے سے سانس آزاد کی جیسے وہ پورے 9 سال سے اٹکی تھی۔ وہ گھر سے گیا تو متوسط طبقے کا عام حلیے والا لڑکا تھا، اور اس وقت جینز شرٹ، جوتے اور بازو پر رکھا جیکٹ، سب کچھ اتنا بدلا تھا کہ وہ کسی فلم کا امیر کبیر ہیرو لگ رہا تھا۔ ودی نے جو ایک ہاتھ ٹرالی بیگ پر رکھے تھا، جھک کر فون اٹھایا۔ فون کی اسکرین 2 3 آڑی ترچھی لکیروں کے ساتھ تازہ واردات پر منہ بسور رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے بیگ کے دستے سے ہاتھ ہٹا کر فون کے اسکرین پر پھیرا، جیسے یوں کرتے ہی وہ دراڑیں مٹ جائیں گی، اور پھر فون اس کی طرف بڑھایا۔ تبھی گڈو کی سائیکل کی گھنٹی بجی۔ سوری باجی، آج زیادہ ہی لیٹ ہو گیا، مہمان آئے ہیں۔ وہ زمین پر پیر ٹکا کر سائیکل روکے کھڑا حسب عادت پوچھ رہا تھا۔ طوبا نے گیٹ کا پٹ پورا وا کیا اور ودی کے بازو سے گزر کر گڈو کے قریب آئی۔ کہاں سے آئے ہیں مہمان؟ میں تو ڈر رہا تھا آپ نے تالا ہی نہ لگا دیا ہو، لیکن پھر سوچا فون نہیں کیا مطلب نہیں لگایا ہوگا۔ طوبا نے اس کے ہاتھ سے یک سی تھیلی لی اور پلٹنے لگی کہ اس نے پکارا، باجی مہمان کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اتنا تو بتا دو۔ وہ اسے گھور کر گیٹ سے اندر آ گئی۔ گڈو بڑبڑاتا ہوا سائیکل آگے بڑھا لے گیا۔ وہ زینے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ودی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں تک آنا ایک سفر تھا، اور گیٹ سے بڑے ابا کے کمرے تک جانا دوسرا سفر۔ وہ واپس آئی اور کچھ کہے بنا ٹرالی بیگ اپنے ساتھ گھسیٹ کر پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زینے کے پاس آ کر اس نے بیگ اٹھا کر زینہ چڑھنے کے لیے ہینڈل نیچے کیا ہی تھا، پیچھے سے ودی نے آ کر بیگ اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ ٹکرائے تھے۔ وہ تیزی سے بڑے ابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بڑے ابا؟ وہ دستک دیے بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ان سے پہلے بڑی امی اٹھ بیٹھیں۔ ابھی تک نہیں آیا گڈو؟ پھر ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اچھا، تالا لگا دیا ہے۔ وہ واپس لیٹنے لگی تھیں کہ اس کی بات پر تیزی سے کھڑی ہوئیں۔ باہر وہ ودی، اس گھر میں یوں اس کا نام ہی کافی تھا۔ بڑی امی کے نہ قدم سنبھل رہے تھے نہ آواز۔ وہ ہائے ودی، میرا ودی کہتی گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکلیں۔ سامنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ ان کے منہ سے بے ربط سے جملے ادا ہو رہے تھے۔ جتنا انہیں اس کی آمد کا انتظار تھا، اتنا اچانک وہ آ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، اور اندر بڑے ابا اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کان ہال کی آوازوں پر لگائے تھے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں پلنگ سے اتار کر باہر لے جائے یا ودی کے اندر آنے کا انتظار کرے۔ وہ آئے گا، اس کا یقین ڈگمگا رہا تھا۔ باہر بڑی امی نے اس کی امید کے برعکس کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ خوش تھیں، اسے بار بار گلے لگا کر یقین کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تھاما، ہاتھ چومے، لیکن ایک بار بھی نہیں کہا اتنے برس کیوں لگا دیے، اتنے وقت بعد کیوں آئے، میں ترس گئی تھی، مجھے کس بات کی سزا دی۔ اس کے بن باز نے انہیں محتاط کر دیا تھا، کیا پتا پھر کسی بات پر وہ چلا جائے، یا پھر ان کے نزدیک وہ سب سوال اور شکوے بیکار تھے کہ وہ آ گیا تھا اور ان کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ آؤ اپنے ابا سے مل لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ان کے کمرے میں لے آئی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باپ بیٹے دونوں میں سے کچھ بعید نہ تھا۔ ودی کے لیے یہ قدم سب سے کڑی مسافت تھے۔ دروازے سے ان پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سکڑ گیا۔ اگر وہ نفرت کرنے کے قابل ہوتا تو اسے دنیا میں اس انسان سے نفرت ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کمزور، لاغر اور ہڈیوں کے ڈھانچہ بنے شخص کو دیکھ کر اس کے اندر اداسی اتری تھی۔ اسے ویسی کمینی سی خوشی نہیں ہوئی تھی جیسی وہ سوچتا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے غیر مرئی تخت کے بنا دیکھ کر وہ محسوس کرے گا۔ السلام علیکم۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ بڑے ابا نے جواب دیا، اور طوبا کو لگا وہ آج ایک معجزے کی شاہد بنی ہے۔ عجیب سی فضا تھی کمرے کی، نامانوس، بے چین، بے آرام سی۔ کوئی بندہ اپنے کردار میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باپ سے مجبوراً ضرورتاً اتنی بات کرنے والا ودی پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ اولاد پر حکم چلانے اور ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والے بڑے ابا کے جھکے کندھوں سے زیادہ حیران کن ان کی دھندلی آنکھیں تھیں۔ شوہر اور اولاد کے درمیان ہمیشہ دباؤ اور تناؤ میں رہنے والی بڑی امی اس وقت پرسکون تھی، بس وہی کل کی طرح آج بھی اپنے کردار میں تھی، تماشائی۔ لیکن نہیں، وہ تو آج اس منظر کے پیچھے کی وجہ تھی۔ سفر ٹھیک تھا؟ بڑے ابا نے پوچھا۔ جی۔ ڈائریکٹ فلائٹ تھی؟ نہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ رسمی اور عام سی گفتگو کی اہمیت اس پر آج واضح ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں باورچی خانے میں چلی آئی۔ دودھ اندر رکھ کر فریج بند کیا ہی تھا کہ امی کی کال آ گئی۔ امی سے کیا کہوں، اسے نئی فکر نے آن گھیرا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بڑی امی کی آواز ابھری تو وہ چونکی۔ ان کی بیماری اور نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ امی ہیں، کیا کہوں؟ اسے رک رک کر الجھن بیان کی۔ مجھے دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، یہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے بھائی جان بھی؟ ذرا رک کے بات ہی سن لو۔ ہاں تو ودی آیا ہے؟
हाँ, हाँ, वही अभी कुछ देर पहले। हाँ, वही कहने वाली थी, उसे छुट्टी ना मिले तो तुम ही आ जाओ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने फ़ोन बंद करके वापस उसे दिया। टूट कैसे गया? गिर गया था। वधी खाना खाएगा है या कुछ बाहर से मंगवा लें? उनका जोश और खुशी उसे अच्छी लग रही थी। है बड़ी अम्मी, मैं फ्रीज़र से भी कुछ निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ। वो फ्रेश होकर आ रहा है, तब तक तुम कर लो। मैं साकिब और शहाब को फ़ोन कर लेती हूँ। जी। दोबारा फ्रिज खोलते हुए उसे भी बड़ी अम्मी की तरह ख्याल नहीं आया कि वो फ्रेश होने किधर गया है। दरवाज़ा खोलते ही वधी को एहसास हुआ कि उसका कमरा अब किसी और के ज़ेरे इस्तेमाल है। एक्साइटमेंट में अम्मी को ख़्याल नहीं रहा, शायद बैग घसीटता वो आगे आया। पहला मरहला उसकी तवक्को से ज़्यादा सहल साबित हुआ था, जिसे सोचकर सारा वक़्त उसके आसाब तशन्नुज ज़दा थे। इस पड़ाव के पार हो जाने पर वो अब सुकून की हालत में थे। यहाँ आने के फैसला के बाद से उस पर हावी आसाब शिकन सोचें भी सुस्त होकर कहीं गर्दन डाले ऊँघ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर उसके अंदर सुकून था। वो अब तक खुद को यकीन दिलाता आया था कि इस घर से दूर जाना, यहाँ की गुलामी का तोग गले से उतार फेंकना, यहाँ के असूलों और जेलर से बच जाना उसकी खुशकिस्मती थी। वो हमेशा खुद को शाबाशी देता था कि बड़े दोनों भाइयों के मुकाबले में वो खुद को बाप के साए से दूर कर पाया था। लेकिन इस वक्त उसके अंदर उतर रहा हर एहसास उसे बावर करा रहा था कि उसे हमेशा इस घर और इस जगह और यहाँ के लोगों को बेइंतहा याद किया था। 9 साल कबल वो जिस इत्मीनान की खातिर यहाँ से गया था, वो इत्मीनान उसे यहाँ आकर ही महसूस हो रहा था। वो पलंग पर बैठ गया जो कभी उसका हुआ करता था। सिल्वर से पाक सतरंगी चादर से होती उसकी नज़र तकिए के साथ रखी किताब पर पड़ी। वो गुलजार की नज़मों की किताब थी। उसने पहला सफ़ा खोला और वहाँ तूबा शेख लिखा देखकर ठिठक के कमरे पर नज़र दौड़ाई। पर्दे पर लटक रहे कैचर, आराइशी मेज़ पर रखे लोशन, क्रीम, लिपस्टिक, स्क्रंचीज़ और दरवाजे के पीछे लगे हैंगर में झूलते दुपट्टे और अबाया। उसने मुड़कर खुली किताब में एक बार फिर नाम को देखा और दरमियान से किताब खोली जहाँ पेंसिल रखी थी। सफ़े पर आदतन ही उन्वान से नज़्म थी। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में। पाँव बेहिस हैं, चलते जाते हैं। एक सफ़र है जो बहता रहता है। कितने बरसों से, कितनी सदियों से सांस लेते हैं, जीते रहते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं। अल्फाज सीधे दिल पे जाके लगे थे। उसने आहिस्ता से किताब बंद कर दी। कुछ देर वो शशोपंज में रहा कि किसी और कमरे में जाए या यहीं रुका रहे। अब तो उसे बाकी कमरों के मकीनों का भी अंदाज़ा नहीं था। इस कमरे में उसके साथ तलाल रहता था और वो जानता था तलाल अब पूना में है। घर में कमरों के मकीनों के अलावा भी बहुत कुछ बदल गया था। ज़रा देर बाद वो तरोताज़ा होकर बाहर आया तो बड़ी अम्मी खानदान भर में उसके आने की खबर सुनाने में मशगूल थी। उसे देखकर जल्दी-जल्दी बात समेटी और उसे लेकर बावर्ची खाने में आई। तूबा कबाब तल रही थी। दोनों ने कुर्सियाँ सँभाली और उसे खाना चुन दिया। उसे याद था उसे घर छोड़ा उस वक़्त यहाँ फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाकर खाना खाया जाता था, चुपचाप और बिना आवाज़ किए कि दस्तरख़्वान पर अब्बा भी मौजूद होते थे। वहाँ कौन बनाता है खाना? बड़ी अम्मी ने मशरक़ी माँओं की पहली परेशानी को आवाज़ दी। खुद ही बनाता हूँ, वो सारे लवाज़मात मेज़ पर रख कर बाहर आ गई। एहतियात से बड़े अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। क्या आज नींद की गोली असर करेगी? उसने इसी एहतियात से दरवाज़ा बंद करते हुए सोचा। वो फ़ोन देखते हुए अपने कमरे में आई, खोला, भाभी और तलाल के पैगाम थे। उसे बिना देखे ही फ़ोन बंद कर दिया। वदी के आने का सुनने के बाद क्या बात हो सकती थी? उसे अंदाज़ा था और इसीलिए उसे मैसेज पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी। फ़ोन आराइशी मेज़ पर रखते हुए उसे आईने में वही ग्रे ट्रॉली बैग नज़र आया और वो यूँ झटके से पीछे मुड़ी गोया बैग की जगह वधी खड़ा हो। ये वदी का कमरा है था। उसे तेज़ी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई और सुकून का साँस भरा। उसकी सलीका मंदी ने शर्मिंदगी से बचा लिया था। वो बैग के पास आई, जिस पर प्लास्टिक की थैली में वधी के उतारे हुए कपड़े सलीके से तय करके रखे थे और हैंडल पर तौलिया फैला था। बड़ी अम्मी शायद बताना भूल गई उन्हें। अब तो ऊपर एक मंजिल का इज़ाफ़ा हो गया था जहाँ खोला भाभी और उनके बच्चों के कमरे थे। यहाँ तक जब तक तलाल यहाँ था वो और अम्मी एक कमरे में थीं। तलाल के जाने के बाद वो उसके कमरे में आ गई थी। वो आहिस्ता से पलंग के किनारे बैठ गई। उसे एकदम याद आया और वो फ़ोन देखने लगी। 9 साल तक वो उससे राब्ता करने का हौसला जमा नहीं कर पाई थी, लेकिन अब बड़े अब्बा की ज़वाल पज़ीर सेहत ने उसमें वो हिम्मत भर दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वदी अब भी ये फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहा होगा। वो बस अपनी किस्मत आज़माना चाहती थी।
پہلی اور آخری بار کچھ کرنا چاہتی تھی، سارے خوف اور اندیشوں کے ساتھ وہ یہ خطرہ موڑ لینے کو تیار ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے بعد والی صورتحال آر پار کی ہوگی، جس میں وہ سب کچھ ہار بھی سکتی تھی۔ اسے چیٹ کھول کر وہاں موجود اکلوتا پیغام دیکھا جس پر بلیو ٹک بھی نہیں تھی۔ تم میرے میسج کی وجہ سے آئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم نے میرا میسج دیکھا، پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ نمبر تمہارے پاس ہی ہے یا کسی نئے مالک کو یہ میسج گیا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے میں نے میسج کیا اور کچھ دن بعد تم آ گئے؟ اسے فون سے نگاہ ہٹا کر اس کے بیگ پر مرکوز کی۔ تم واقعی اس گھر میں موجود ہو۔ وہ اس حقیقت پر خوش ہونا چاہتی تھی لیکن اب دل سہما تھا۔ کیا پتا 9 سال پہلے جس زنجیر سے بڑے ابا نے اسے اس گھر سے باندھا تھا وہ اسے یہیں اتار پھینکنے آیا ہو۔ اس نے انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا جو بڑی امی نے نکاح کے بعد کنگن کے ساتھ اسے پہنائی تھی۔ کنگن تو اس نے اگلے دن ہی اتار دیے تھے مگر انگوٹھی 9 سال سے اس کی انگلی میں موجود تھی۔ فون سے ابھری آواز پر وہ ادھر متوجہ ہوئی۔ امی نے صوتی پیغام بھیجا تھا۔ وہ کل صبح ہی بس سے نکل رہی تھی۔ ان کی آواز کی کھنک اور جوش پر وہ اور اداس ہو گئی۔ یا اللہ میری امی کو اب کوئی دکھ نہ دینا، اس نے تڑپ کے دعا کی۔ 9 سال سے ان کی جان بھی تو سولی پر تھی۔ بہت دیر بعد جب اسے خیال آیا کہ کھانا ہو گیا ہوگا تو وہ باہر نکلی۔ بڑی امی اور وہ وہیں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ وہ اس نازک موقع پر بے تحاشا مسرت کے باوجود اس بات کا خاص خیال رکھ رہی تھیں کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو پھر اسے ان سے دور کر دے۔ ان کی ساری عمر ہی احتیاط برتتے گزری تھی۔ شوہر کا مزاج تو تھا ہی کڑوا۔ بچے بھی جو باپ سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ سب ماں کو سناتے تھے، اور ان کی ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی کسی طرح بچوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کے ابا یہ سب ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ ساری سختیاں اور پابندیاں ان کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی ہیں۔ ان کے ممتا کا مقابلہ ہمیشہ وفادار بیوی سے رہا تھا۔ انہیں نہ شوہر غلط لگتا تھا نہ بچے، لیکن ان کا اختیار بس بچوں پر چلتا تھا۔ اب بھی لاشعوری طور پر اس کا دل نرم کرنے والا وہ شوہر کا بدلہ مزاج اور ان کی بیماری اسے سنا رہی تھی۔ اس بار گئے تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا گھر میں ہی آکسیجن کا انتظام رکھنا پڑے گا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اٹھا لو طوبا، تم نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ وہ بھی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کارنر والا کمرہ ٹھیک کر دیا ہے؟ وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف گیا تو اس نے برتن سمیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑی امی سے کہا۔ اچھا آؤ۔ انہوں نے اسے جواب دے کر بدی کو دیکھا۔ اب ان کی آواز اور چہرے سے تھکان مترشے تھی، نیند بھی اب گہرے تھی، لیکن 9 سال کے انتظار کے بعد ملنے والی یہ خوشی سب پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ آپ بھی سو جائیں اب بڑی امی، ورنہ صبح طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، اب کہ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ودی میز کے پاس آیا اور اسے ادھر جا کر جھوٹے برتن سنک میں رکھے۔ صبح بات کریں گے امی، آپ آرام کریں۔ میڈیسن لی آپ نے؟ ہاں ہاں لے لی تھی، تم بھی سو جاؤ، اتنے لمبے سفر نے تھکا دیا ہوگا، آؤ۔ وہ اسے تنہا چھوڑنے پر تیار نہ تھی، ساتھ میں لے کر باورچی خانے سے نکلی۔ انہیں ان کے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ واپس ہال میں آیا۔ باورچی خانے سے آ رہی آوازیں اس کے اب بھی ادھر ہی ہونے کا اعلان تھیں۔ وہ اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہی اس ہال میں اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا، سب گھر والوں کے ساتھ چچی کے پیچھے کھڑی۔ 20 سال کی طوبا اس دن باقیوں کے مقابلے میں زیادہ افسردہ اور دکھی تھی۔ ہر کوئی آنن فانن عقد اور اس کی رخصت پر حیران سا تھا۔ اتنی یکایک تبدیلیاں اور فیصلوں پر حیرانی ہر کسی کو تھی، لیکن اسے سب سے چھپ کر اس طرح بری طرح روتے تڑپتے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس منظر نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو جانے سے پہلے اسے کہنا چاہتا تھا کہ ابا کے فیصلے نے کیسے سب الجھا دیا ہے، مگر اس کے بعد اس وضاحت اور صفائی کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی تھی۔ وہ بہت ٹوٹ کے گھر سے نکلا تھا۔ اسے اب بھی اپنے بڑے ابا پر پورا بھروسہ ہوگا۔ جانے سے پہلے اس کے اداس چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اسے افسردگی سے سوچا تھا، اپنے شوق اور خواب کی جو قیمت وہ ادا کر کے جا رہا تھا اس سے سب چھین لیا تھا۔ وہ خالی اور کنگال تھا، اور اس سارے خالی پن میں ایک ضد براجمان ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سخت مزاج اور ظالم باپ کو سبق سکھانا تھا۔ آہٹ پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر صوفے کے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر رخ اس کی طرف کیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ گھر میں محض 3 افراد کی موجودگی میں اس کا سوال مناسب تھا۔ کھولا بھابھی اپنی امی کے یہاں ہیں، ثاقب بھائی انہیں لینے گئے ہیں، شہاب بھائی اب ساتھ نہیں رہتے، طلال کی جاب پونا میں ہے، امی آج کل اس کے پاس ہے۔ اسے ایک سانس میں ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا، اس کے اچھا میں اپنے لیے ہی اچنبھا تھا کہ یہ سب تو وہ جانتا تھا، پھر جانے کیوں اس وقت بھولے بیٹھا تھا۔ اس نے گیٹ مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اسی کام سے جا رہی تھی کہ ہال میں اسے دیکھ کر رکنا پڑا تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے امی کے کہنے پر اپنے پرانے روم میں چلا گیا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا تھا، درمیان کے 9 سال تکلف اور اجنبیت بن کے جو کھڑے تھے، اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتا، طوبا نے درمیان میں ہی اس کی بات منقطع کر دی۔
हॉल के बाद पहले रूम में चले जाएं, वो कहकर बाहर चली गई। वदी ने वहीं से उसे गेट पर कुफल लगाते देखा और उसके वापस आने से पहले ही अपना बैग लेने चला गया। तूबा के बताए कमरे में आकर उससे बत्ती बुझाई और पलंग पर गिर गया। बेशुमार सोची थी, साथ ही जेट लैग भी, और वो सारी रात जागता रहा। आज रात नींद तूबा को भी नहीं आनी थी। गुज़श्ता शब ही बड़ी अम्मी सबको फ़ोन खड़का चुकी थीं, इसलिए अगली सुबह उसने खुद को मेहमानों के लिए तैयार कर लिया था। चूँकि साकिब भाई का रिज़र्वेशन कल शाम की ट्रेन का था, सो वो सबसे पहले सुबह-सुबह भाभी और बच्चों के साथ पहुँच गए। तब वदी सो रहा था। अकेला आया है? खोला भाभी के सवाल में छुपा तजस्सुस उसे खूब पता था। जी। बड़े अब्बा कैसे मिले उसे? नॉर्मली। नॉर्मली क्या होता है? उन्हें उसका जवाब अच्छा नहीं लगा। उन्हें हर बात मुफ़स्सिल चाहिए होती थी। फिर ये तो बड़ा ख़ास मौका था जो अपनी आंखों से ना देख पाने का। उन्हें बड़ा अफ़सोस हो रहा था। वो गुस्सा नहीं हुए, ना कोई तंज़ और शिकायतें की। दोनों ने दुआ सलाम की और हाल अहवाल पूछा। बस, उनकी आवाज़ में मायूसी थी। उसने पराठा तवे पर डाला और सर्द नरम सी चादर अपने ऊपर पड़ते ही गरम तेल की चीखें निकल गई। बड़ी अम्मी ने तो पूछा होगा इतने सालों से अकेला है, या उन्होंने मायने खेज अंदाज में चुप हो गए हो कि असल सवाल लफ्ज़ों में ढाले बिना ही पूछ लिया। मुझे नहीं पता भाभी, बड़ी अम्मी और वदी की क्या बात हुई। होला भाभी अक्सर ही उसकी बर्दाश्त आजमाती थी, लेकिन आज उसे तहम्मुल अपनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ रहे थे। वो यही है, आप खुद ही उनसे सब पूछ लीजिएगा। उसे चिमटे से पकड़कर पराठा पलटा। मैं क्यों पूछूं? वो बिदक कर पीछे हुई। घर वालों को फिक्र होनी चाहिए, जब उन्हें नहीं पड़ी तो मैं कौन? वो यूं ही मौका देख कर घर वाली और पराई होती रहती थी। ऐसा नहीं था कि 9 साल से वो रिश्ते नाते तोड़ बैठा था और उसके बारे में किसी को कुछ इल्म ना था। वो अपनी माँ और भाइयों से बात करता था, लेकिन खुला भाभी का अंदाज और सवाल ऐसे ही थे, गोया अब उसके आने पर ही उसके बारे में सब और सच मालूम होगा। सबके नाश्ते ही चल रहे थे कि अम्मी भी आ गईं। उनके वाकई खुशी के मारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बड़े अब्बा का नाश्ता लेकर गई तो वो मामूल की तरह अखबार पढ़ रहे थे। उन उसने पहियों वाली मेज़ पर ट्रे रखी और उन्होंने अखबार उसे थमा दिया। अखबार रख के उसे मेज़ के पहिए इसी तरह पलंग के नीचे किए कि ट्रे अब उनके सामने थी। नाश्ते से पहले वाली टैबलेट ले ली थी? उसने रोज़ वाला सवाल दोहराया। हाँ बेटा, वधी उठा। वो जो तब से सोच रही थी कि किस तरह वधी की आमद पर उनके ख़यालात का अंदाज़ा लगाए, उन्होंने खुद ही सवाल पूछकर उसे हैरान कर दिया। नहीं, जल्द ही उसे संभल कर उसे जवाब दिया। साकी भाई खोला भाभी आ गए हैं और अम्मी भी। वो नाश्ते के बाद की दवाएं निकालने लगी। आप बाहर चलेंगे कुछ देर? उसे उबला अंडा छीलते बड़े अब्बा को देखा। उनके अंदर क्या चल रहा है, अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। अभी नहीं, तलाल भी आया है? नहीं, अम्मी को सुबह बस में बिठा दिया था। वैसे अब अम्मी आधी हो गई हैं। उसे दवाइयों का डिब्बा बंद किया और मुट्ठी की सारी गोलियां ट्रे में रखी, छोटी सी खाली प्याली में डाल दी। वो खामोशी से नाश्ता करने लगे और वो पलंग पर बिखरा सामान समेटने लगी। सारे घर में वो वाहिद हस्ती थी जिसे उन्होंने कभी डांटा नहीं था, जिस पर कोई सख्ती नहीं की थी। जाने उन्हें अपनी भतीजी यतीम होने की वजह से अजीज थी, या फिर बेटी होने की वजह से। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटों से नवाजा था, बेटी नहीं दी थी, और उनकी वजह से तूबा ने कभी अपने अब्बा की कमी महसूस नहीं की थी। वो तलाल के साथ भी सख्त सख्त थे, लेकिन उसके लिए सरापा शफकत और मोहब्बत। बचपन में शहाब भाई अक्सर इस बात पर उससे लड़ाई करते थे। उन्हें लगता था वो बस उसके साथ सगी औलाद जैसा बर्ताव करते हैं और बाकियों के साथ सोतेला। बड़े अब्बा से पूछूं उन्हें वधी का आना कैसा लगा? उसे किनकियों से उन्हें देखा, फिर फौरन ही अपना ख्याल रद्द कर दिया। माना वो उनसे इधर उधर कई बातें कर लेती थी, लेकिन इतनी हिम्मत अब भी नहीं आई थी। तुम जाओ, काम होगा, मैं दवाइयाँ ले लूंगा। उन्होंने उसे देखा। जी। वो बाहर आ गई। उनका दिल और फेफड़े बेहद कमज़ोर हो गए थे। दिल के जाने कौन-कौन से आर्ज़े उन्हें लाहक थे। डॉक्टरों का कहना था, जब तक ये दवा और इलाज की मदद से धड़कने के काबिल है, वो जीते रहेंगे। चंद माह से वो अपने कमरे तक महदूद होके रह गए थे। ज़रा सी जिस्मानी मेहनत से वो निढाल हो जाते थे। उनका साँस फूल जाता था। इस मेहनत में ज़्यादा चलना भी शामिल था। आखिरी बार जब साकिब भाई उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वो भी उनके हमरा थी, और वहीं डॉक्टर की बातें सुनने के बाद उसने वदी को लिखा था। वो अक्सर सोचती थी कि उनकी बीमारी में वदी की जुदाई का कितना हाथ है। उसने तो अपनी मुस्तकिल मिजाजी यानी जिद से सबको हैरान कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जाएगा तो वाकई पलट कर देखेगा भी नहीं। उसका आबाई वतन एक छोटा सा देहात था। तायाबा और उनका खानदान अभी वहीं रहते थे। दादा पढ़े लिखे नहीं थे। तायाबा ने भी चंद जमातें पढ़ी थी। दादा की मुख्तसर सी ज़मीन पर काश्तकारी एक भरे पूरे खानदान के लिए नाकाफ़ी थी। उनके बेटे भी वहीं छोटे मोटे काम करते थे। सबसे छोटा बेटा जो बीए कर पाया था, शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके बीवी बच्चे भी गांव में ही होते थे। तायाबा के बरक्स बड़े अब्बा ने शहर आकर पढ़ाई जारी रखी।
रखी थी। तालीम के हसूल में उन्हें अपने घर से कोई सहारा मिला था, ना मुआवनत, बल्कि उसके लिए उन्होंने बड़ी परेशानी और मुश्किलें झेली थीं। उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें शहर के तर्ज़ ज़िंदगी और तालीमी इदारों के काम-काज से नावाकिफ़ियत की वजह से पेश आई थी। अपने वालिद की मर्ज़ी और नाराज़गी की परवाह किए बिना वो छोटे भाई को भी अपने शहर ले आए थे। उसके बाद भी उन्होंने शादी भले वालिदैन की मर्ज़ी से की, लेकिन उनके हुक्म और ख़्वाहिश के बावजूद बीवी बच्चों को शहर में अपने साथ रखा। दादा चाहते थे कि वो शहर में नौकरी करें और बहू और पोते उनके साथ गाँव में रहें, मगर वो बच्चों की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई समझौता करने को तैयार न थे। इसी वजह से वो घर में सबके लिए एक सख्त गीर किस्म के सरबराह बन गए थे। बच्चों को सहूलियात सारी दी, लेकिन रियायत मुरव्वत ज़रा भी नहीं। उन्हें स्कूल में पढ़ाई के अलावा दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल के बाद मोहल्ले में जाकर खेलने का कलील सा वक़्त मुअय्यन था, जिसमें बच्चे कभी मुतमईन नहीं हो पाते थे। एक-दूसरे को समझने जानने का जो फुक़दान उनमें और उनके अब्बा में था, वही उनमें और उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो गया था। लेकिन उनकी नज़रें जिस हदफ पर थीं, उसे दीगर मनाज़िर पर तवज्जो पड़ने ही ना दी। इम्तिहानों के बाद अच्छे नताइज उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी का यही एक मकसद तय कर रखा था। वो खुद ही सब कुछ देखते थे। ओपन डे या पीटीए, जहाँ सब बच्चे माँओं के साथ आते, उनके साथ हमेशा बड़े अब्बा होते। बड़ी अम्मी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थीं। अंग्रेज़ी वो अल्फ़ाबेट्स की हद तक जानती थीं। ना उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के मामले में शामिल होने की कोशिश की, ना बड़े अब्बा ने उन्हें मौका दिया। स्कूल के बाद भी बच्चों के मज़ामीन क्या होंगे, किस मैदान में वो अपनी अमली और पेशा वराना ज़िंदगी शुरू करेंगे और उसके लिए ज़रूरी तालीमी लियाकत की तकमील, कॉलेज का इंतखाब, सारे फ़ैसले उन्होंने ही किए थे। वदी को अपने नंबरों की बिना पर मुंबई के कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, लेकिन बड़े अब्बा दोनों बड़ों की तरह उसे भी अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। उससे पहले उसके अंदर बाप की सख्तियों का डर था। उनका तरीक़ाकार नापसंद था। गुस्सा भी आता था, लेकिन उसे मुंबई जाने ना देने पर उसके अंदर बगावत पनपने लगी थी। छोटा भाई चूंकि उनके साथ ही रहता था, इसलिए अपने बेटों जैसी सख्ती वो तलाल पर भी करते थे, जो भाई की वफात के बाद भी जूं की तूं कायम रही। बस एक तूबा थी, जिसे बचपन से उन्होंने खास शफकत से नवाजा था। वो सबसे छोटी और घर की वाहिद बेटी थी। फिर बाप की वफ़ात के बाद तो वो उन्हें और अज़ीज़ हो गई। उसके लिए उनका दिल और रवैया हमेशा नरम ही रहा था। कुछ वो भी मिज़ाजन ज़िम्मेदार और ताबेदार थी। बड़ों के साथ बड़े अब्बा का रवैया देख कर ही उसे उनकी पसंद वाले सारे काम अपना लिए थे। उन्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दिया था। बड़े अब्बा की सल्तनत उनकी मर्ज़ी और हुक्म के मुताबिक ठीक-ठाक चल रही थी। साकिब भाई और शहाब भाई अच्छी नौकरी के बाद शादीशुदा होकर बाप भी बन गए थे। उन सबको ज़िंदगी में कामयाब और मसरूफ़ देखकर हर कोई उसका सेहरा बड़े अब्बा के सर बाँधता था। मवाज़ने और मुकाबले के लिए सबके पास गाँव में बरसों पहले जैसे दुगरगुं हालात में ही जी रहा ताया अब्बा का ख़ानदान था। तलाल और वदी की नौकरी के बाद घर में उन दोनों की शादी के चर्चे होने लगे थे कि तभी अचानक वदी ने शोशा छोड़ा कि उसे बैरून मुल्क मुलाजमत मिल गई है और वो जा रहा है। बड़े अब्बा ने साफ कह दिया, कोई कहीं नहीं जा रहा, मगर इस दफ़ा घर में बगावत और हुक्मतूली की फिजा कायम हुई थी। वदी बाप के सामने डट गया कि वो तो जाएगा ही, चाहे इस घर से निकाल दिया जाए। ये घर में आया पहला तूफान था, जहाँ दरो दीवार ने हमेशा बड़े अब्बा की गिरजदार आवाज़ ही सुनी थी, आज वो भी एक तवाना ज़िद्दी लहजे पर हैरान थे। उसकी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी। उसके पर उड़ान के काबिल हुए तो उसे अब अपनी मर्ज़ी का आसमान चाहिए था। वो बाप की कैद और पहुँच से दूर होना चाहता था। उसने अपने तय सारे इंतज़ामात कर लिए थे, अब उनके इख्तियार में कुछ नहीं था। उसके होश इस वक़्त ठिकाने आए जब पासपोर्ट नहीं मिला। पहला ही शक अब्बा पर गया और उसे यकीन नहीं आया उसका बाप ऐसी हरकत भी कर सकता है। माँ हमेशा की तरह इस मामले में भी बेबस थी। जब पासपोर्ट की बाजियाबी के लिए वो उनसे बहस कर रहा था, तो उन्होंने अपनी असली तहकुमाना और बेलचक लहजे में शर्त रखी, पासपोर्ट चाहते हो तो जाने से पहले तूबा से निकाह कर लो। जब वो सोकर उठा तो दोपहर हो चुकी थी। ज़रूरियात से फारिग होकर बाहर आया तो उसका इंतज़ार करते-करते सबने खाना खा लिया था। साकिब भाई और चची यानी तूबा की अम्मी बड़ी गर्मजोशी से मिली। बच्चे अजनबी मेहमान की तरह उसे सलाम करके तहज़ीब के दायरे में खड़े थे। खौला भाभी की कुरेदती तलाशती निगाहें उसे महसूस हो रही थीं। कितने बड़े हो गए हैं सब। वो अपने कद के बराबर पहुंच चुके अब्दुल्ला और अब्दुल राफे को देखकर हैरान था। बड़े दिन बाद भी तो देखा है तुमने। चची की बात पर वो सर हिला के मुस्कुरा दिया। वो उनसे पढ़ाई और उनकी दिलचस्पियों के बारे में पूछने लगा। अब तुम खाना भी खा लो। बड़ी अम्मी से ज़्यादा देर सब्र नहीं हुआ तो दरमियान में टोक दिया। दोपहर के खाने का वक्त भी गुजर चुका है अब तो। कुछ देर नींद मुझे वहाँ के टाइम पर ही आएगी अम्मी, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसने उन्हें समझाया, पहले खा लो फिर बातें करना। वो खड़ी हुई तो वो भी उठ गया।
आओ खोला, उसे खाना दे दो। वहीं बैठी बहू से कहती उसे लिए बावर्ची खाने में आई। कुछ देर बाद खोला तो नहीं, तूबा अंदर आई। खोला ने उसे भेजा था कि बड़ी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, और उन दोनों को देख कर वो समझ गई खोला ऐसे ही थी। सो गए। उसे देखते ही बड़ी अम्मी ने दरियाफ्त किया, नहीं जाग रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलकर प्लेटें निकालने लगी। कुछ दिन से दोपहर में बिल्कुल नहीं सोते, पहले तो अच्छी 1.5 घंटे की नींद ले लेते थे। वो वदी से कहने लगी, उनके दोस्त आए थे कुछ दिन पहले, तो किसी अच्छे डॉक्टर का बता रहे थे, कह रहे थे एक बार उसे भी दिखा लेना चाहिए। अब तुम आए हो तो ले जाना, लेकिन जाने उनके पास सारी बातें शोहर की ही थीं, या ये उनकी शोहरी कोशिश थी बाप की बीमारी, तकालीफ या मुजमहिल और कमज़ोर हालत के जिक्र से उसका दिल पिघलाने की। उसे माँ की मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था। उनकी सारी उम्र ही इस कोशिश में गुजरी थी, शोहर की तरफ से बच्चों का दिल साफ रखें और बच्चों की तरफ से शोहर का। वो जानता था वो ऐसा ही कुछ अब्बा से भी कह रही होंगी। तूबा ने खाना मेज पर रखा और चली गई। खाना खत्म हुआ ही था कि शाह भाई बीवी बच्चों के साथ आ गए। कल जो घर सन्नाटे में डूबा था, आज वहाँ आवाजें ही आवाजें थीं। बहुत देर तक बातें करने के बाद सब कुछ देर आराम की गर्ज से कमरों में चले गए। वो चूंकि जरा देर पहले ही सोकर उठा था, इसलिए कुछ देर कमरे में वक्त गुजारने के बाद फिर बाहर आ गया। शाह भाई और भाभी साकिब भाई के साथ ऊपर गए थे। नीचे एक बार फिर खामोशी का राज था। धीमी आवाजों के ताक़ुब में वो हॉल के दरवाजे पर आया। तूबा पोश में बैठी दानिया के बाल बना रही थी। आंटी, मुझे ना, दानिया, अगर तुम यूं ही हिलती रही न, तो मैं नहीं बनाऊंगी चोटी। उसे फ्रेंच ब्रेड का शौक था, जब आती उससे बनवाती। और नाहिद भाभी का कहना था कि उसके बाद वो 2-3 दिन तक बाल ही खोले नहीं देती थी। मैं कहाँ हिल रही हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। बात नहीं करो बस। मुंह खुलते ही जुबान के साथ उसका सारा जिस्म मुतहरिक हो जाता था। मुझे एक बात की टेंशन है, आप वो दूर कर दें तो मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हें काहे की टेंशन? वो धीरे से हंसी। क्या आप उन अंकल के साथ चली जाएंगी जो आए हैं? उसके हाथ रुके। दानिया ने उसे पहली बार देखा था, इसलिए बाकियों के मुकाबले में उसके लिए ये चाचू कतई अजनबी थे। फिर मेरे बाल कौन बनाएगा? मम्मा को तो आती ही नहीं। आप किसी को सिखा के जाएं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि जाएं ही नहीं आप। मेरे जाने के बाद किसने बताई तुम्हें? उसने आहिस्ता से दोबारा उसके बालों की लटें एक दूसरे में फंसाई और धीरे से पूछा। किसी ने नहीं। मैंने मम्मा और बड़ी आंटी की बात सुनी थी। अंकल आपके हस्बैंड हैं। आपने ये बताया क्यों नहीं मुझे? तो वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। बताए ना, क्यों नहीं बताया? दानिया ने उसकी खामोशी पर इसरार किया। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वो आपके हस्बैंड नहीं है और आप उनके साथ नहीं जाएंगी? वो खुश हो गई। फिर मम्मा ने क्यों कहा? मैं बता दूंगी उन्हें। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, और अब खुदारा खामोश रहो। तूबा आंटी, जरा तवक्कुफ के बाद वो मिनमिनाई। मैं कंफ्यूज हो गई। अंकल आपके हस्बैंड हैं या नहीं, इतना बता दें। अल्लाह जाने, ये आजकल के बच्चे, कभी बच्चे होते भी हैं या नहीं। तूबा ने दिल में सोचा। जाओ, बन गए तुम्हारे बाल। उसे आखिर के बच्चे बालों के गिर्द हेयर बैंड को बल दिए और पीठ थपथपा के उससे जाने को कहा। वो उठकर खड़ी हुई और रुख उसकी तरफ किया। कुछ कहने जा रही थी कि पीछे दरवाजे की तरफ देखते हुए चौंक गई। तूबा ने भी मुड़ के देखा और फिर झटा के दिखने लगी। आप ही बता दें अंकल, दानिया ने वदी को देखते हुए पूछा। और तूबा ने उसका फ्रॉक खींचकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश की। क्या आप आंटी के हस्बैंड हैं और इन्हें लेने आए हैं? जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए थे, दानिया ने कर दिखाया। तूबा उसकी तरफ पुश्त किए साकित बैठी सोच रही थी कि उसे कहाँ से दानिया की बातें सुनी हैं। और वदी इस उफ्ताद पर यूं खड़ा था मानो कहीं से तेज रफ्तार बॉल आके सीधा सर पर लगी हो। और झुंझुनाया दिमाग समझने से कासिर था कि क्या हो रहा है। उसे कभी नहीं सोचा था उसे इस सादा और सीधे से सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वो भी 7-8 साल की बच्ची को, जो जवाब तलब नजरों से मुसलसल उसे देखे जा रही थी। हम्म। उसे इकरार में सर हिला के हुंकारा भरा। दानिया का चेहरा उतर गया। तूबा खड़ी हुई, दानिया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटती वदी के बाजू से गुजरती अंदर चली गई। दानिया को यह सवाल जवाब किसी से ना कहने की हिदायत देना फजूल था। उसे छोड़कर वो अपने कमरे में आ गई। सारे कमरे में जैसे वदी की संजीदा आवाज फैली थी। पागल मत बनो। भला भला दानिया को और क्या कहा जा सकता था? उसे नहीं कहा है या हाँ? वो खुद को समझाने लगी। वो दिलो जान से इस हूं को इकरार मानना चाहती थी, लेकिन खुद हकीकत शनास होने का एहसास उसे रोक रहा था। हॉल में तन्हा कुर्सी पर बैठा वदी उसके इस तरह जाने को डिकोड कर रहा था। क्या उसे मेरा हाँ कहना अच्छा नहीं लगा? घर में वो भी मिलने आ रहे थे जो उसे याद नहीं थे। उसे सबके साथ बैठकर उन सब सवालों के जवाब दोहराने पड़ते जो परदेश में तन्हा रहने वाले वाले से पूछे जाते हैं। कुछ तो सिर्फ इसलिए मिलने आते ताकि वो उन्हें या उनके किसी सगे को भी बाहर बुला लें। कुछ को वहां जाने, रहने और सरवाइव करने की सारी तफसील दरकार होती थी। उसे लगने लगा था वो परदेश जाके काम करने वालों के लिए कोई कंसल्टिंग फर्म चला रहा है।
اس کے دوستوں نے بھی خبر ملنے پر اسے رابطہ کیا تھا۔ وہ ان سے ملنے گھر سے نکلا تو دیکھا اس کا شہر بھی بدل گیا تھا۔ 9 سال بعد کئی نئی جگہیں، نئی چیزیں آ گئی تھیں اور کچھ پرانی چیزیں اپنے دارد تھیں۔ شہر کا چپا چپا گھومتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اسے اپنا شہر کتنا پیارا تھا۔ جو سیرابی اب اس کے اندر اتری تھی اسے اپنے شہر کی اہمیت کا احساس کرایا تھا۔ تو کیا میں اتنے سالوں سے محسوس کرنے کی حس کھو بیٹھا تھا؟ ہر احساس پر وہ خود سے پوچھ رہا تھا کہ یا مجھ پر صرف دو ہی احساس حاوی تھے، ایک باپ سے جڑا تھا اور ایک توبہ سے۔ شام میں ثاقب بھائی آئے تو سموسے کے لفافے ان کے ہاتھ میں تھے، تمہارے فیورٹ سموسے۔ انہوں نے توبہ کو آواز دی اور لفافے اسے تھما دیے۔ تم نکالو، تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اسے ان سموسوں سے کیا کیا نہیں یاد آ گیا تھا۔ ابا دفتر کے کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سارا دن پتنگ بازی میں لگا رہا تھا۔ پتنگ اڑاتے اور لوٹتے ہوئے وہ گھر سے دور جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، اور جب اندھیرا ہونے کے بعد فون کی ڈیڈ بیٹری کے ساتھ رات کو گھر پہنچا تو اس کے ڈیڈ ہونے کا سامان سامنے موجود تھا۔ ابا شام سے گھر آ گئے تھے اور بیلٹ ہاتھ میں تھامے بے قراری سے اس کے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی ٹہل رہے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے پتنگوں اور مانچھے کے ساتھ طوطے بھی اڑ گئے اور ابا اسے عمر بھر کے لیے دوبارہ ایسی عیاشی سے باز رکھنے پر اڑ گئے۔ اس دن بالآخر امی کی مداخلت پر اس کی دھنائی رکی تھی۔ وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ رہی سہی کسر پٹائی نے پوری کر دی۔ جسم کا رواں رواں درد سے چیخ رہا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس میں رونے اور دہائی دینے کا بھی دم نہیں بچا تھا۔ مار بھی بڑے دنوں بعد پڑی تھی، ورنہ 9ویں جماعت کے بعد ثاقب بھائی اور شہاب بھائی کی روایت قائم رکھتے ہوئے ابا نے اسے بھی پیٹنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے تمہیں روک رہا تھا کہ مت جاؤ۔ بڑے ابا نہ بھی آتے، شام میں تو انہیں کسی نہ کسی سے پتہ چل ہی جانا تھا۔ طلال افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چپ رہو، اس وقت مجھ میں سننے کی تو دور مرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اسے بیزاری سے بدعقت کہا۔ اسے اس وقت زندگی اور دنیا کی ہر چیز سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکے سے دروازہ کھول کے طوبہ نے اندر جھانکا۔ اسے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دعا کی کہ وہ چلی جائے۔ طوبہ نے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔ اپنے پسندیدہ سموسوں کی خوشبو ندنوں سے ٹکراتے ہی وہ دکھن اور پٹائی کی شرمندگی سب بھول گیا۔ اچانک اسے یاد آیا وہ کتنا بھوکا ہے۔ وہ کھانا سوچتے سوچتے ہی گھر آیا تھا کہ ہاتھ دھوتے ہی باورچی خانے میں گھسے گا۔ طوبہ نے خاموشی سے پلیٹ بستر پر اس کے سامنے رکھی اور پھر اوپر ڈھکی پلیٹ ہٹا دی۔ وہ سموسوں پر جھپٹا ہی تھا کہ طلال نے ہاتھ پر چپت ماری۔ ہاتھ تو دھو لو۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر ہاتھ دھونے بھاگا۔ اس پل وہ سب بھول گیا تھا۔ یہ کون لایا؟ طلال نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ بڑے ابا کے آنے کے بعد امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ واپسی میں اس شرما جی کی طرف سے گزرے تو لے لیے۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ امی کو اس راستے سے لائی تھی۔ تھینک یو، اسے چادر پر پھیر کر ہاتھ خشک کیے اور سموسا اٹھایا۔ اس کا حال یوں تھا مانو تاریک الدنیا ہونے کا فیصلہ کرتے ہی کسی نے اس کے آگے زمانے بھر کی رنگینیاں رکھ دی ہوں۔ اس احسان کے بدلے تم میری جان بھی مانگ لو، کبھی تو دے دوں گا۔ اسے اتنا بڑا لقمہ توڑا تھا کہ بھرے منہ سے بمشکل بول سکا۔ بس سموسوں جتنی قیمت ہے تمہاری جان کی، طلال نے تمسخر سے کہا۔ یہ عام سموسے ہیں، نہ عام سچویشن۔ اس وقت ان کی قیمت اور قدر کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ میں اس کے بدلے طوبہ کو اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ وہ کسی قحط زدہ بھوکے کی طرح کھا رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی جان، اس نے گھبرا کے اس تیزی سے کہا جیسے وہ اپنی شہرک پر چھری رکھے ہو۔ طوبہ، اس نے نوالا حلق سے اتار دیے ہوئے ہاتھ روکا۔ تم یہ سموسے یاد دلا کر مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی ہو، آئی پرومس، انکار نہیں کروں گا۔ طلال نے اس کی نقل اتاری۔ پیچھے سے بڑے ابا کی آواز آئے گی، اور طوبہ کون سے سموسے، کیسا پرومس؟ طلال نے آگے آ کر ایک سموسا اٹھایا۔ تم آزما لینا طوبہ، ان سموسوں کی قسم۔ اسے طلال کو گھورتے ہوئے پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کی۔ طوبہ نے ٹرے میز پر رکھی تو وہ ماضی کے منظر سے باہر آیا۔ وہ سنجیدہ سی شکل لیے واپس جا رہی تھی۔ تمہیں بھی تو سب یاد آ رہا ہوگا۔ اس نے اسے باورچی خانے میں غائب ہوتے دیکھا۔ دونوں نے ہی اب تک اس چند سطری پیغام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹرے میں رکھے تازہ سموسوں کو دیکھا۔ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، لیکن اس وقت اس واقعے کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ضروری نہیں وہ میسج ملا ہی ہو، کیا پتہ وہ نمبر اب کسی اور کے یوز میں ہو اور اسے ایک انجان نمبر سے آئے عجیب سے میسج میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اندر وہ خود کو سمجھا رہی تھی، اگر واپس آنے کی وجہ وہ میسج ہوتا تو اب تک کچھ تو کہا ہوتا۔ دل یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس پیغام کی وجہ سے آیا ہے، لیکن ذہن کو سارے شواہد اس کے خلاف محسوس ہو رہے تھے۔ اسے صبح 4-5 بجے کے بعد ہی نیند آتی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھنے کے ارادے سے ہال میں آیا تھا اور وہاں طوبہ کو دیکھتے ہی قدم رک گئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ جانے لگی تھی کہ ودی نے پکارا۔
طوبا उसे रुक कर उसे देखना पड़ा। बैठो। आगे जाकर सोफे पर बैठते हुए उसे उसे भी बैठने का इशारा किया। तुमसे बात ही नहीं हो पाई अभी तक। तूबा को लगा लगा वो लम्हा आ गया है जिससे वो बच रही थी। सुस्त कदम उठाती वो सोफे के दूसरे किनारे पर बैठी और पास पड़ा कुशन उठा के गोद में रख लिया। उनका बचपन साथ गुजरा था, स्कूल भी एक ही था, ताहम उनमें कोई खास या गैर मामूली कुर्बत नहीं थी। साकी भाई और शाह भाई की निस्बत वो तलाल और वदी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो तलाल को नाम से बुलाती थी। अव्वल अव्वल सब ने उसे बड़े अब्बा गुस्सा होंगे कहकर समझाया डराया, लेकिन जब बड़े अब्बा ने कोई एतराज़ नहीं किया तो उसकी आदत पक्की हो गई। फिर वो तलाल की तरह वदी को भी नाम से मुखातिब करने लगी। जैसे एक घर में रहने वाले बहन भाइयों और कजन्स के ताल्लुकात होते हैं, उनके भी वैसे ही थे। वो अक्सर तलाल और उसे बड़े अब्बा के इताब से बचा लिया करती, उनके लिए बहाने बना बना लेती और कभी झूठ भी बोल देती थी। बड़े अब्बा घर में होते तो सभी अपनी जगह खामोशी से काम में या पढ़ाई में लगे होते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वो तीनों अक्सर साथ बैठकर पढ़ते, गप्पे लगाते या फिर टीवी पर कुछ देख लेते थे। वो चाहता था दोनों दरमियान के 9 साल भुला कर बात करें। अगर वो उसे कतरा रही थी तो ये उसका मसला था, उसे ही हल करना था। यही सोचकर उसने आज पहल की थी। तुमने आगे यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की? उसे अपने जाने के वक्त से बात शुरू की थी। उन दिनों उसने ही जोर शोर से उसे बताया था कि अब वो मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जाया करेगी। नहीं। वो सर झुका के उंगली में पड़ी अंगूठी घुमाने लगी। मेरी वजह से? वो ऐसी दो टोक बात कभी नहीं करता था जैसे इस वक्त कर रहा था। असल वजह किसी की जुबान पर नहीं आ रही थी। हाँ, वो भी ऐसी ईमानदार पहले ना थी। कुछ वक्त बात तो कंटिन्यू कर सकती थी। वो मुसलसल उसे देख रहा था। वक्त गुजरने के बाद तो सब कुछ और मुश्किल होता गया। अचानक उसने सर ऊंचा किया। उसे भी छुपन छुपाई वाला खेल अच्छा नहीं लग रहा था। वो टीनेजर्स नहीं थे। गुजरे वक्त ने उन्हें पुख्तगी और बालिदगी अता की थी, और दो सुलझे और समझदार इंसानों को इस अजीब और बेआराम करने वाली सूरत हाल से गुफ्तगू का पल ही निकाल सकता था। और तुम्हारे लिए वक्त गुजरने के साथ तुम्हें आसानियां मिली? तुबा ने पूछा। मैं आसानियों की तलाश में नहीं गया था। वो फिर आंखें झुकाकर अंगूठी से छेड़खानी करने लगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद झिझकते हुए पूछ ही लिया, तुम जिस भी मकसद से गए थे क्या वो पूरा हुआ? वो कह देता, मैं तो मुलाजमत के लिए गया था और वो मकसद अब तक पूरा हो रहा है, लेकिन वो इतने अजनबी भी नहीं थे। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, वो कंधे उचका कर बोला। तुम इतने सालों से एक ही जगह थे? खामोशी और उस पर टिकी बदी की नजरें ही नहीं, उसे अपने चेहरे के तासुरात पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए घबरा के पूछा। नहीं, मैं नेदरलैंड लग्जमबर्ग के बाद अब लंदन में हूँ। तुम्हें नहीं पता? साकिब भाई, शाह भाई और तलाल भी जानता है। उसने नफी में सर हिलाया। वो क्या बताती कि उसके सामने कोई इसका जिक्र करता ही नहीं था। जाने वो अपनी दानिस्त में उसे दुख से बचाते थे या कोई और वजह थी। अगर बात चल चल भी रही होती तो उसे देखते ही सब मौजू बदल देते। कुछ खोज की तो कोशिश उसने भी कभी नहीं की। फिर चुप की चादर तन गई। जितनी बातें उनके दिलों में थीं उसके लिए रात भी कम थी, लेकिन शर्त उन्हें जुबान पर लाना था। तुमने कहा। जरा देर बाद हॉल में वदी की धीमी आवाज उभरी। वक्त गुजरने के बाद सब और मुश्किल होता गया था। तुम्हारे लिए मुश्किल था? इससे ये सवाल भी जुल्म था, लेकिन वो जानना चाहता था। तूबा ने जख्मी निगाह से उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर पूरी उसकी तरफ घूमी और पैर भी सोफे पर रख लिए। उसके अंदर कोई तार छिड़ गया था, चिंगारी कैसे ना निकलती। तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारे मुतालिक क्या क्या बातें मशहूर हैं? वो उसके जवाब के लिए रुकी नहीं। तुमने वहां शादी कर ली है, तुम्हारी बीवी कोई गोरी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, किसी को यकीन है तुम्हारी बीवी कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, कुछ के पास तुम्हारी बीवी की तस्वीरें भी हैं। बहुतों का ख्याल है तुम इसीलिए बाहर जा रहे थे कि मुझसे शादी ना करना पड़े, और अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि मेरे इसलिए वापस नहीं आ रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ ना रहना पड़े। कुछ को लगता है तुम कब का मुझे तलाक दे चुके हो, लेकिन घर वाले, खास तौर पर बड़े अब्बा, ये सबसे छुपा रहे हैं। 9 साल तक कोई किसी के नाम पर बैठा नहीं रहता। सो लाजमी मुझ में कोई ऐब, कोई खामी है या ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं इस घर में हूँ। तो किसी के लिए बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी हमारी कफालत का खराज इस तरह वसूल कर रहे हैं। वो सांस लेने को जरा रुकी। लोगों के सवाल, नजरें, क्यास, सब मुझे 9 साल से इस घर से बाहर निकलने नहीं देते। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया है, लेकिन इस बात पर भी दुनिया मुझे भूली नहीं, बल्कि उससे उनके तजस्सुस को मजीद हवा मिलती है और वो खुद ही खबर लेने यहाँ चले आते हैं। 9 साल बाद वो अवलीन जोश न सही, मगर लोग भूले कुछ नहीं है। जहाँ भी मुझे और तुम्हें जानने वाले 4 लोग मिल जाए, हॉट टॉपिक यही होता है। अम्मी और बड़ी अम्मी सबसे कैसे निपटती हैं वो अलग दास्तान है, और अपने ही घर की मेंबर इस टॉपिक को कैसे जिंदा रखे हैं वो अलग। उन सब का निचोड़ ये है कि आज भी सब लोगों को लगता है
तुम्हें क्या लगता है? उसने ज़रा ऊँची आवाज़ में पूछकर उसे रोका और वो चौंक के उसे देखे गई। गो कि उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी तेज़ लहजे और मुसलसल बात के बाद यकायक हॉल में सन्नाटा छा गया था। उन सब में तुम्हें क्या सच लगता है? उसने सवाल आसान किया। तुम ही बता दो क्या सच है? कुछ भी नहीं। जाने वो उसे क्या बावर कराना चाहता था, कौन सा यकीन उस तक पहुंचाना चाहता था, वो एकदम ढीली ढीली पड़ गई। उसे एहसास हुआ वो जज़्बात की रोह में बहकर लड़खड़ा गई थी। वो चाह के भी अपने 9 साल के बिन बास की वजह नहीं बता रहा था, वो उसके जाने की वजह नहीं थी। लेकिन ये भी सच था, वो उसी की वजह से इतने बरस लौट नहीं सका था। एक बार फिर उनके दरमियान चुप बुक्कल मार के बैठ गई। वो दोनों ही 9 साल कबल उसके जाने से ज़रा देर पहले बदले रिश्ते पर एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाल रहे थे, जबकि उनके ज़हन और दिल की हर बात और सोच इस ताल्लुक का तवाफ़ करती थी। सॉरी, उसकी आवाज़ में निदामत थी। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किलें दी और इतने साल तक दी। ये महज़ मेरी मुश्किलें नहीं थीं, उन्हें सब ने झेला है। यानी मुझे सबसे सॉरी करना होगी। वो धीमे से मुस्कुराया। तूबा यूं ही नजरें झुकाए खामोश रही। साकिब भाई और शहाब भाई अपने बच्चों के साथ कैसे हैं? कुछ देर बाद उसने संजीदगी से पूछा। साकिब भाई बड़े अब्बा के बिल्कुल उलट हैं और शहाब भाई बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। साकिब भाई ने तीनों बेटों के साथ दोस्ताना रवैया रखने की कोशिश भी की, लेकिन सिवाय छोटे अब्दुल राफे के उनके साथ बड़े दोनों फ्री नहीं हो सके। अब्दुल रहमान का 10th का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन 12th में बहुत ही खराब, जबकि उसे कॉलेज स्ट्रीम ट्यूशन सब अपनी मर्जी से मुंतखब किया था। रिजल्ट के बाद उसे किसी भी अच्छे कॉलेज या उसकी मर्जी की फील्ड में एडमिशन नहीं मिला। साकी भाई ने भारी डोनेशन देकर आईटी में जैसे तैसे एडमिशन करवाया। अभी वो सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाता है और उसकी अपनी लॉजिक है, जिसके मुताबिक इस मेस की सबसे बड़ी वजह साकी भाई है। सबका कैलिबर मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर ही बने। उसे कोई आसान फील्ड चूज़ करने दी होती। उसका लहजा खुद बहुत तंग सा गया था। साकिब भाई ने पढ़ाई के मामले में कभी बच्चों पर अपनी मर्जी थोपी, ना अच्छे नंबरों का प्रेशर डाला। आईटी में जाने का फैसला अब्दुल रहमान का अपना था। ऐसा ही होना चाहिए। उसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वो चुप हो गई। उसका मानना था कि साकिब भाई उसकी इस काबिलियत और जहनी इस्तेदाद जानते थे, तो उन्हें बेटे को समझाना चाहिए था। उसे मनाना और राज़ी करना था कि ये उसके लिए मुश्किल होगा। और शहाब भाई की फैमिली? कुछ तवक्कुफ के बाद उसने दूसरा सवाल किया। वो तुम्हारे जाने के बाद ही अलग हो गए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बस उन्हें बच्चों के लिए अलग स्पेस चाहिए थी। उसके कदम ने दूसरों में भी हिम्मत पैदा कर दी थी। तो बड़े अब्बा भी बेटे की बगावत के बाद कमज़ोर पड़ गए थे। उन्होंने फिर किसी भी मामले में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की थी। उनका बड़ा बेटा तो सिर्फ कोई डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहा है, तो स्कूल में है, और छोटी दानिया तो अभी प्राइमरी में है। तुमने तो दानिया को अब देखा होगा। दानिया के साथ ही उसे उसका कारनामा भी याद आ गया। तस्वीर भेजी थी शहाब भाई ने और वो मुझे बिल्कुल अम्मी जैसी लगी थी। वो मुस्कुराया। याद उसे भी था। हाँ, उसमें बड़ी अम्मी की शबाहत है। वो मुस्कुराई तो जाने क्यों, वदी को उस तबस्सुम में उदासी घुली महसूस हुई। नए नक्श के साथ उसने दादी की गुलाबी रंगत भी चुराई थी। मुझे अब नींद आ रही है। वो एकदम कुशन सोफे पर रखती उठ खड़ी हुई। तुम भी सो जाओ, उसे कहती वो अपने कमरे की तरफ जाती हुए रुक कर पलटी। कभी बड़े अब्बा के पास भी चले जाया करो। उसे सर हिलाया और वो आगे बढ़ गई। बदी के तसव्वुर में था कि तूबा का रवैया उसके साथ उखड़ा और सर्द होगा। उसके जहन से वो शिद्दत से रोती तूबा कभी निकली ही नहीं थी। वो शबी पूरी जुजियात के साथ अब भी उसकी याद में जिंदा थी। वो निकाह दोनों के लिए किसी सदमे से कम न था। तूबा के लिए अपने जज्बात के बावजूद इस वक्त उसके दुख की वजह कुछ और थी, लेकिन तब तूबा के रोने की वजह एक ही हो सकती थी कि अब्बा ने उसके साथ भी जबरदस्ती की थी। उस दिन उसका रोना आम से गिरियाजारी नहीं था, वो शाज ही रोती थी, लेकिन उस दिन की तड़प और बेकरारी कुछ अलग थी और अब उसका आम सा अंदाज उसे मजीद उलझा रहा था। मर्जी के खिलाफ निकाह और फिर 9 साल तक पलट करना पूछने पर वो उसके साथ जितना बुरा सलूक करती जायज़ था, लेकिन वो ना उसकी आमद पर खुश महसूस होती थी, ना नाराज़ या दुखी। उसके रवैये ने वदी के लिए वो क्या चाहती है उसका सवाल पाना मुश्किल कर दिया था। बड़े अब्बा और उनकी बेटी। उसे सीधा होकर सर पीछे गिराया। ना पहले आसान थे, ना अब आसान है। उससे बड़े अब्बा के कमरे में आए चंद मिनट ही हुए थे कि बाहर से शोर उभरा। उसे अभी उनका मिजाज ही पूछा था। बड़े भैया और भाभी आए हैं, बड़ी अम्मी ने आकर इतला दी। मुझे ले चलो बाहर। वो टांगों से चादर हटाते हुए गोया हुए। वदी उनसे पहले खड़ा हो गया। कुछ हिचकिचाया, फिर झुककर उन्हें पलंग से उतरकर खड़ी होने में मदद की। बड़ी अम्मी तो निहाल ही हो गईं। जब वो उसका सहारा लिए हॉल में आए तो बैक वक्त सारी आंखें उनकी जानिब उठ गईं। उस मंजर ने हाजरीन के खदशात कमजोर करके उनके अंदर एक खुशगवार सा एहसास जगा दिया था।
उसने उन्हें सोफे पर बिठाया और तायाबा के पास जाकर उनसे मिलने लगा। तायाबा के पास उसकी हरकत की सरजनिश, जिद के नुकसानात, लाताल्लुकी की शिकायतें, सिलवातें, समझाने वाली बातें, मशवरे और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखे सबक थे। वो सर झुकाए सब सुनता रहा और सुनते-सुनते ही उसे इदराक हुआ कि ये सब वो अपने अब्बा से सुनने की तवक्को कर रहा था। वो दानिया, तौकीर और अब्दुल राफ़े के साथ लूडो खेल रही थी, मगर उसके कान पीछे चल चल रही गुफ्तगू पर लगे थे। तारीख रख ली? ताई अम्मी हमेशा अपना पान-दान साथ लाती थीं। इस वक्त भी वो देवरानियों को पान बनाकर दे रही थी। अभी नहीं, अम्मी ने किन से बेटी को देखा और उसे खेल में गुम देखकर मुतमईन हो गई। क्या कह रहा है वदी? साथ ले जाएगा या हमेशा के लिए परदेश छोड़ के आया है? अभी ये सब पूछा नहीं भाभी। बड़ी अम्मी ने यूं कहा जैसे जिठानी के सुपुर्द किए काम में उनसे कोताही हो गई हो। ए लो, तो इतने दिन से क्या रही हो तुम दोनों? 9 साल क्या कम थे जो और दिन गवाए जा रही हो? उन्होंने बड़ी अम्मी को पान की गिलोरी थमाई और नम मलमल के कपड़े में छुपा दूसरा पान उठाकर उसकी डंठल मरोड़ी। तैयारी शुरू करो, दावतें दो, तूबा को भेजना है साथ तो उसकी तैयारी पकड़ो और उन सबसे पहले एक तारीख पक्की पक्की करो। कहो तो उनसे कहती हूँ, अभी बैठकर फैसला हो जाएगा। नहीं भाभी, बड़ी अम्मी ने तेजी से कहा और उसकी अम्मी जो जोश में ताई अम्मी को हाँ कहने जा रही थी, सख्ती से लब भेज कर उन्हें देखने लगी। पहले मैं इसके अब्बा से बात करती हूँ, इतना तो तय है कि अब तूबा की रुखसती होनी ही है। उन्होंने देवरानी का हाथ पकड़ कर दबाया। आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें, जब फोन करूँ सबको लेकर आ जाइएगा बस। आखिर में उन्होंने खुशदिली से माहौल बदला। तूबा ने शुक्र किया कि वहाँ खोला भाभी मौजूद नहीं थी। वो ताई अम्मी की बहू को अपने साथ ऊपर ले गई थी। उसे इल्म था वहाँ क्या बातें हो रही होंगी, फिर भी यहाँ हो रहे मजाकरे में उनका शामिल ना होना ज्यादा सूदमंद था। तूबा आपी, अब्दुल्ला ने अंदर आकर उसे पुकारा। पापा चाय का कह रहे हैं। वो उठकर बावर्ची खाने में आ गई। ताया अब्बा 2 दिन रुके रहे और ये वक्त उनके लिए बड़ा कड़ा कड़ा साबित हुआ। उन्होंने उसकी शादी का जिक्र सबके सामने छेड़ दिया था। गनीमत था कि उस वक्त वदी मौजूद नहीं था। जब और जैसा वदी कहेगा। बड़े अब्बा के जवाब ने जहां सबको मुतमईन किया कि अब कोई नया पंगा नहीं होगा, वहीं उसकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने तो बच्चों का भला चाहा था, जिम्मेदार बाप के फराइज निभाए थे और आखिर में वो किस कदर बेबस और मजबूर थे और उसमें कुछ हाथ उसका भी तो था। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। वो जो सिगरेट की तलब में तारीख हिस्से में जा रहा था कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से आती खोला की आवाज पर खोला की आवाज पर रुक गया। शादी रुखसती की बात कौन मुंह से निकाल नहीं रहा। कोई मुंह से निकाल नहीं रहा ना। वहां उसने कौन से गुल खिला रखे हैं ये कोई पूछता है। पूछता है वो तो आगे पीछे घूमती रहती है उसके। रात में जब भी देखो दोनों किसी कोने खुदरे में दुबके होते हैं। और नहीं तो क्या, अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे बांधे कौन। और तो और उनकी बात जारी थी लेकिन वो पलट गया। उनकी बकवास और मुबालगा आराई पर उसे गुस्सा आ रहा था। बेख्याली में अंदर आते हुए वो सिगरेट सुलगा चुका था। कश लेता हुआ वो राहदारी में आया। उसी वक्त तूबा अपने कमरे से निकली और उसे इस दीदा दलेरी से कश लगाते देख पहले हैरत और सदमे से आंखें फैल गई, फिर एकदम घबराहट तारी हुई। बड़े अब्बा भले कमरे तक महदूद थे लेकिन घर अभी उनके बनाए असूलों पर चल रहा था। उनके रोब और दबदबा इतना था, अब भी इतना था कि इस घर में सिगरेट की बू भी ममनू थी और इस वक्त सब सोए भी नहीं थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही हॉल से अब्दुल्ला और अब्दुल राफे की आवाज उभरी और इसने बिना सोचे समझे वदी का बाजू पकड़कर अपने कमरे में घसीट लिया। पागल हो गए हो तुम? वो बरहम थी। घर में बच्चे भी हैं, उनके सामने सिगरेट पियोगे? पहले बड़ों के सामने पीना मना था, अब बच्चों के सामने भी। इस घर में सिगरेट ही मना है। अल्लाह करे बच्चे बू का पीछा करते इधर ना आ जाए। उसे हाथ मार के धुएं के मरगोले और बू दूर करनी चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है तूबा। बच्चे इस बात पर खुश होंगे कि कोई इस घर में सिगरेट पीता है और बू का पीछा करने के बजाय उसे राज रखेंगे ताकि अगली दफा कोई उनका राज भी छुपा सके। उसे आगे बढ़ते हुए एक लंबा कश लिया और जलती सिगरेट मेज पर धरे पानी के जग में डाल दी। क्या पता छुप छुपा कर ये काम कब से इस घर में हो रहा हो और किसी को खबर नहीं। वो पलट कर गोया हुआ। तुम इतना मनफी क्यों सोचते हो? उसे वहीं खड़े खड़े धीरे से पूछा। मनफी? मनफी मुस्बत की बात नहीं, जो माहौल और हकीकत से करीब है वो बात कर रहा हूँ। मैंने सिगरेट फर्स्ट ईयर में शुरू की थी। तुम तब से स्मोकिंग कर रहे हो? उसे धचका लगा था। मैं आदी नहीं हूँ लेकिन वहां के मौसम में कभी कभी पीनी पड़ती है। उसे इसका सदमा कम करना चाहा। वैसे पाबंदियां सबसे बड़ी मूजिद हैं चोर रास्तों की। तुम भी इस बात की गवाह हो। वो मुस्कुराया। मैं? उसे ताज्जुब से अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा। हाँ, मुझे अब्बा से बचाने के लिए तुमने भी चोर रास्ता इन्वेंट किया था। वो जाने किस चोर रास्ते की बात कर रहा था, उसे तो कई याद आ गए।
مجھے ہندی ٹیسٹ میں 2 مارکس ملے تھے، تب تم نے اپنے ٹیسٹ پیپر کے ساتھ مکس کر کے میرے پیپر پر بھی ابا کے سائن لیے تھے۔ تعلیمی میدان میں ان چاروں کے مقابلے میں اسے ہمیشہ رعایت حاصل رہی تھی۔ وہ زبانی اپنے نمبر سنا دیتی تو وہ بڑے ابا مان جاتے، باقیوں کے پرچوں کی طرح پوسٹ مارٹم کر کے اور ہر غلطی پر تھپڑ رسید کرنے کے بعد دستخط نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پرچے ان کے سامنے رکھتی اور وہ نمبر کہتی جاتی، وہ بنا دیکھے ہی سنتے ہوئے دستخط کرتے جاتے۔ اس بار اسے اپنا ایک پرچہ کم کر کے اس کی جگہ درمیان میں ودی کا جوابی پرچہ رکھ دیا تھا اور ودی سے کہا تھا وہ بہانہ بنا دے کہ ہندی کے استاد نے جوابی پرچے دیے ہی نہیں۔ یہ چال بازی عام کلاس ٹیسٹوں میں ہی ممکن ہو پاتی تھی۔ طوبا کو اچھی طرح یاد تھا، اس بنا دستخط والے پرچے کی وجہ سے بطور سزا اسے ایک پیریڈ کلاس سے باہر کھڑے رہنا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے جگ میں تیرتے سگریٹ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے مجھے تب کرکٹ گیم کا کارڈز جمع کرنے کا کتنا شوق تھا؟ اچانک اس سے پوچھا۔ کرکٹرز کی پیشہ ورانہ تفصیل اور رینکنگ والے کارڈز اس کے پاس بے شمار تھے۔ طوبا نے سر ہلایا۔ ابا کبھی بھی کمرے میں آ کر تلاشی شروع کر دیتے تھے، ان کے ڈر سے وہ سارے کارڈز چھپانے کے لیے ایک جگہ بنائی تھی میں نے۔ کیا پتہ اب بھی کارڈز ہوں وہاں؟ اس سے پلنگ کے ساتھ رکھی تپائی پلنگ سے دور کی، وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ودی نے تپائی ہٹا کر پلنگ کو تھوڑا دائیں طرف دھکیلا، پھر فرش پر بیٹھ کر پلنگ کے نیچے پہلی کتار والی ٹائلیں انگلیوں سے بجا کر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ رک کر اسے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر تپائی پر رکھی کتاب سے پینسل نکال کر اس کی مدد سے ٹائل اس جگہ سے اٹھانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد ٹائل ہٹائی تو اس کے نیچے 2-2.5 انچ گہرا خلا تھا۔ حق ہاں، کارز تو نہیں ہے لیکن خفیہ تہخانہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ خود ہی محظوظ ہو کر ہنس دیا۔ تم بھی چاہو تو یہ سیکرٹ جگہ یوز کر سکتی ہو۔ بچپن کی یادوں اور باتوں نے اس کی طبیعت بشاش کر دی تھی۔ طوبا بس مسکرا کر پیچھے ہو گئی۔ اس کے پاس کیا تھا جو یوں چھپانا پڑتا؟ اس نے ٹائل اسی جگہ لگایا، پھر پلنگ اور تپائی صاف کر جگہ پر سرکا دی۔ یہ سلیقہ تنہا رہنے نے اسے سکھایا تھا۔ اتنے سالوں میں اس پر کبھی بیڈ یا ٹیبل کا فٹ نہیں پڑا، ورنہ ٹائر ٹوٹ کر اندر دھنس جاتی۔ یہ سچ تھا کہ کئی چیزوں کی جگہ بدلی، تاہم کمرے کا حدود و اربا ایسا تھا کہ پلنگ ہمیشہ اسی جگہ رہا۔ وہاں سے ہٹنے یا پلنگ پر بیٹھنے کے بجائے وہ پلنگ پر سے پیٹھ لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ تم اس کمرے میں کب سے ہو؟ تمہارے بعد طلال تو یہی تھا، اس کے جانے کے بعد میں ادھر آ گئی۔ وہ فرش پر بیٹھا تھا تو اسے یوں کھڑے ہو کر اس سے بات کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آرائشی آئینے کے اسٹول پر بیٹھ جائے یا اس کی تقلید میں فرش پر فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے سوال اس کے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وہ ہم کیا وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہے، اس لیے اپنے کمرے کے متعلق بات کر رہا ہے؟ وہ اب اس کمرے میں رہنا چاہتا ہے، کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی مجھے اس وقت اس کمرے سے جڑی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اسے خود بھی اپنے عجیب رویے کا احساس تھا۔ تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا سامان دوسرے روم میں شفٹ کر لیتی ہوں۔ اسے فوراً کہا۔ میں کل شفٹ کر لوں گی۔ نہیں، اسے درمیان میں ہی روکا۔ میں ادھر بھی ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے دیواریں دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اسے اپنی گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ لگاتار سر اونچا کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر آرائشی میز کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اتنے سال یورپ میں رہنے کے بعد اب تمہیں یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ مرمت اور دیکھ بھال کے باوجود مکان کا یہ حصہ پرانا تھا۔ اسے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ اس کا انگلش ایکسنٹ لہجہ سن کر اسے پہلی احساس ہوا کہ وہ اتنا طویل عرصہ وہاں رہتے ہوئے وہیں کا باسی لگنے لگا ہے۔ اس کا لباس اور حلیہ تو بدل ہی گیا تھا، اس پر اس کے لہجے میں انگریزی بولتا وہ اسے اجنبی لگا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اس ہنسی میں 9 سالوں کا اکیلا پن اور حسرتیں تھیں۔ طوبا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گھر گھر ہوتا ہے طوبا، ودی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ اعتراف ایک طرح سے اس کی شکست تھا اور یہ وہ اسی کے سامنے کر سکتا تھا۔ 9 سال سے میں بنجارے کسی زندگی جی رہا ہوں۔ طوبا کا دل کیا پوچھے تو کیا اب خانہ بدوشی سے توبہ کر لی ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کیوں بنجارے سے زندگی جی رہے ہو نہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا جواب اسے معلوم تھا، لیکن اسے اب کیا کا جواب سننے کی بے چینی تھی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ میرا مطلب کہ فلیٹ شیئرنگ میں ہے یا تم ہی ہوتے ہو؟ اسے اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات آگے بڑھائی۔ یہاں سے جانے کے بعد 2 سال سے زیادہ تو شیئرنگ میں رہا، اسے کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ وہاں اپنے قیام اور کام کی تفصیل اس قدر مفصل بیان کرنے لگا کہ اسے نہ وقت کا اندازہ رہا، نہ اسے نیند سے بے حال ہوتی۔ طوبا پر توجہ دی، اتنی باتیں وہ سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ خود پر گزری سنا رہا تھا، اسے یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سناتے ہوئے وہ کھو سا گیا تھا۔
وہاں کی زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی اور پہلی بار کسی نے پوچھا تھا، سر جھکا کر بولتے ہوئے جب اسے اوپر دیکھا تو ایک دم رک گیا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہتھیلی پر گال رکھے سو گئی تھی۔ وہ جس انداز میں بیٹھی تھی اسی انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اس کے گھٹنے مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جمائیاں روکتے روکتے بے حال ہو گئی تھی، لیکن اسے درمیان میں ٹوکنا روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ذرا نہیں بدلی تھی۔ اسے آج بھی بڑے ابا کی محبت کے ساتھ ساتھ بڑے ابا کے عتاب کا شکار بننے والوں کی بھی اتنی ہی فکر تھی۔ وہ پیچھے مڑا اور ہاتھ بڑھا کے پلنگ سے تکیہ لیا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا، کہیں جاگ نہ جائے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھک کر احتیاط سے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ سیدھا ہونے کے بجائے وہ پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عمر کی پختگی تھی، الڑ پن کی جگہ سنجیدگی تھی، انداز گفتگو کا ٹھہراؤ چہرے پر بھی ٹھہرا نظر آتا تھا۔ سامنے چہرے میں اتنے وقت بعد بھی معصومیت تھی، لیکن ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہنے والی شوخی اور شرارت ندارد تھی۔ کیا یہ میں نے چھین لی ہے؟ اسے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ اس نے اتنے برس اسے سوچا تھا، چاہا تھا اور صبر کیا تھا۔ اس کی طلب تھی یا تھکن جو وہ باپ کے ساتھ بندھی ضد سے ذرا دیر کو نظر پھیر کر یہاں چلا آیا تھا، لیکن اب بھی اسے دل کا حال سنانے سے قاصر تھا۔ وہ جب بھی ارادہ کرتا، روتی بلکتی توبہ چھم سے اس کے سامنے آ جاتی، اور وہ اپنی آخری امید وہ جتنی دیر ہو سکے قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھا اور پلنگ سے لحاف اور دوسرا تکیہ لے کر واپس آیا۔ لحاف اس کے اوپر پھیلا کر اسے ذرا فاصلے پر تکیے پر سر رکھ کے وہ بھی لیٹ گیا۔ بتی اسی طرح جل رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے توبہ؟ وہ دل میں سوئی توبہ سے جواب مانگ رہا تھا۔ اتنے برسوں میں جو ضد ختم نہیں ہوئی تھی، وہ باپ کو دیکھ کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ان سے شکایتیں اور ناراضی اپنی جگہ، لیکن انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل دکھی تھا۔ اسے افسوس تھا۔ اس کے اندر بار بار پرانے جلالی اور سخت گیر باپ کی شبیہ ابھرتی تھی۔ اسے جانا کہ اس کا ذہن باپ کو اسی روپ میں قبول کرتا ہے، وہ انہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ کمزور، لاغر اور محتاج سے باپ کو دیکھ کر اس کے اندر ظالم کا یہی انجام ہونا چاہیے جیسا کچھ نہیں گونجا تھا، اور اسے اس بات پر حیرت تھی، کیونکہ وہ خود کو یہی یقین دلاتا رہا تھا کہ ایک دن ابا کو ان کی غلطیوں اور سختیوں کی سزا ملے گی۔ اس وقت تو اسے تنفر سے گردن تان کر انہیں جتانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود اپنے اس بوجھل سے رد عمل پر حیران تھا۔ طوبہ کے چہرے پر نظر جمائے وہ بڑے ابا کو سوچتا، جانے کب سو گیا۔ تم اتنی بولڈ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خولا بھابھی نے اسے شانے سے دھکا دیا تو وہ اس افتاد پر گرتے گرتے بچی۔ بولڈ؟ اسے خاک سمجھ میں آیا۔ اب بنو مت، کل رات ودی تمہارے کمرے میں ہی تھا۔ اسے جس قدر زور کا جھٹکا لگا، اسے باہر خود کو اتنا ہی شانت رکھا۔ ہاں، باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ صبح سو گیا، لیکن مجھے تو کام ہوتے ہیں۔ اسے کشن جھٹک کر واپس جگہ پر رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا اور زبردستی کی جمائی لی۔ اب دوپہر میں ہی سونے کو ملے تو ملے، لیکن وہ تمہارے کمرے میں آیا کیوں تھا؟ وہ اپنے نام کی ایک ہی کھولا تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ کمرے میں اس کی ایک خفیہ جگہ تھی، بڑے ابا سے بچا کے کارڈز وغیرہ چھپانے کی۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ اب بھی ہے یا نہیں۔ پھر مطلب ملی وہ جگہ؟ ہاں، پلنگ کے نیچے والی ایک ٹائل نکل جاتی ہے، اس کے نیچے وہ چیزیں چھپاتا تھا۔ آپ کو دیکھنا ہے؟ وہ ایک دم ان کی سمت مڑی۔ اسی وقت بکھرے بال اور الجھے حلیے کے ساتھ جمائیاں لیتا ودی ہال میں آیا۔ خولا بھابھی کو بھی سیکریٹ جگہ دکھا دو، اسے بلا سوچے سمجھے کہا۔ اب رہنے بھی دو، خولا بھابھی نے منمناتے ہوئے اس کی آستین کھینچی۔ اسے پلٹ کر صوفے کے کشن ٹھیک کرتے ہوئے خود کو شاباشی دی۔ مما، اوپر سے عبدالرافع حلق پھاڑ کر چلایا، میرا بلیو اسپورٹس ٹی شرٹ نہیں مل رہا ہے۔ کرسی پر رکھا ہے نکال کے، وہ اس کی جتنی ہی اونچی آواز میں کہتی اوپر والی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ سوری، وہ اس کے پاس آیا۔ کل رات میری آنکھ لگ گئی تھی۔ توبہ جانتی تھی آنکھ پہلے اس کی لگی تھی اور اس کے بعد ودی کو کمرے سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اسے تکیہ اور لحاف یاد تھا اور سامنے سویا ودی بھی۔ خولا بھابھی کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور ان سے کوئی بات چھپ بھی نہیں سکتی۔ میں خیال رکھوں گا، اسے اس کی بات کے درمیان ہی تیزی سے کہا۔ طوبہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چلی گئی۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا۔ آج گھر میں سب اکٹھا تھے۔ طلال موجود تھا اور عبدالرحمن بھی چاچو سے ملنے آیا تھا۔ کھانے کے بعد سارے مرد سب کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر چلے آئے تھے۔ پورچ میں کرسیوں پر بیٹھ کر کام، دفتر اور سیاست پر گفتگو کرتے کرتے بات گھر، زندگی اور بچپن پر چلی آئی۔ دیکھو، ابا فطرتاً نیک انسان ہیں، ان میں کوئی شخصی برائی بھی نہیں تھی، مثلاً کام چور یا غیر ذمہ دار نہیں تھے، اپنے کام اور پیشے میں ایماندار تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ صلہ رحمی والا تھا، بس وہ ہم بچوں کے معاملے میں اسٹرکٹ، سخت تھے۔ ثاقب بھائی کہہ رہے تھے، صرف اسٹرکٹ؟ ابا ہمارے لیے پورے ہٹلر تھے، شاہ بھائی نے تصحیح کی۔ اب انہیں اتنا بھی وائٹ واش نہ کریں، ان کے مزاج اور رویے نے ہماری شخصیت اور مزاج میں کئی خلا اور زخم چھوڑے ہیں۔ اسے حت المقدور لہجہ سادہ رکھا تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن اسے تم کولیٹرل ڈیمیج سمجھ لو جو ہمیں ایک بہتر مستقبل دینے میں ہوا۔
ये बेहतर मुस्तकबिल बिना किसी कोलेटरल डैमेज के भी दिया जा सकता था, शाह भाई ने कहा। वैसे फिर आपने अपने तीनों बच्चों के साथ बड़े अब्बा के बिल्कुल मुतजाद रवैया क्यों रखा? तलाल ने पूछा। हमारा अपने बच्चों के साथ अच्छा बुरा जैसा भी रवैया होता है, उसकी सबसे पहली वजह हमारे माँ बाप का हमारे साथ रवा रखा गया सलूक होता है। दादा ने बच्चों की एजुकेशन या फ्यूचर पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। स्कूल जाना है जाओ, ना जाना है ना जाओ। हमने ताया को देखा ही है, अब भी गांव में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही हैं। अब्बा ने खुद अपनी जिंदगी बदली सवारी और फिर हमारी भी। उन्होंने चाचा को भी अपने साथ पास शहर बुलाया, उन्हें पढ़ाया और किसी काबिल बनाया। उनकी कोशिश थी वो महरूमियां हमारे हिस्से में ना आए जो उन्होंने भुगती। उनका तरीका कैसा था या उसे हमें किस बुरी तरह मुतासिर किया, उन्होंने इस नुक्ते पर तवज्जो नहीं दी। उनकी तरजीह और मकसद हमारा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेना थी। और देख लो अब्बा इसमें कामयाब है। साकिब भाई ने बारी बारी इन दोनों को देखा। उन्हें अपने अब्बा से शिकायत थी, हमें हमें अपने बाप से शिकायत है। मेरे बच्चों को मुझसे होगी, उनके बच्चों को भी उनसे होगी। यही सच है। हम अपने वालिदैन की कमियों, खामियों और गलतियों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें खुद ना दोहराने का अज़म करते हैं। और मज़े की बात बताऊं, यही साइकिल हमारे बच्चे भी दोहराएंगे। आपका मतलब है अब्बा का तरबियत का अंदाज ठीक था? उनकी हम पर लगाई बंदिशें और सख्तियां सही थीं? उसे हैरत से पूछा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब मैं उनके इस स्टाइल के पीछे की वजह और मकसद को समझता हूँ। मैंने सोचा था जो हमारे साथ हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ वो सब नहीं करूँगा। मैंने खुद को अब्बा से यकसर मुख्तलिफ बाप बनाया, बच्चों पर सख्ती नहीं की और अब प्रेशर के बिना तालीम हासिल करने वाले मेरे बच्चे मुझे दोष देते हैं कि मैंने उन्हें ठीक से गाइड नहीं किया। अब्दुल्ला ने मेरी नरमी और छूट का वो फ़ायदा उठाया कि बिल्कुल ही लापरवाह हो गया। और जब वो 9th में फ़ेल हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि सख्ती ना करना और ऐसा चेक रखना कि बच्चे को ज़िम्मेदारी का एहसास हो, दो अलग बातें हैं। अब्दुर्रहमान कहता है बतौर बाप में उसके रुझानात बेहतर समझता था और मुझे उसे कन्विंस करना चाहिए था कि आईटी उसके बस की बात नहीं। वो उदासी से मुस्कुराए। होला को भी शिकायत है कि मैं बच्चों के फ्यूचर और एजुकेशन के मामले में ढीला हूँ। और आप शाहब भाई, वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं तो आज तक यही तय नहीं कर पाया कि मुझे कैसा बाप बनना है, अब्बा जैसा सख्त या साकिब भाई जैसा नरम। जब बच्चों को ढील दूं तो याद आता है कि साकिब भाई को ऐसा करके क्या मिला। सख्ती करता हूं तो अपने दिन याद आ जाते हैं। अब्बा और साकिब भाई के बीच बीच में मैं कहीं शहाब भी आ जाता है। वो हंसने लगे। मैंने तो हमेशा बहसीयत बाप खुद को बड़े अब्बा जैसा ही तस्वुर किया है। तलाल ने आयशा से कहा। मुझे अभी से तुम्हारे बच्चों से हमदर्दी है, वदी ने कहा। मैंने तो दरमियानी राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ मलगूबा किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल तरबियत हो गई है मेरी। शाह भाई की बात वो सब हंस दिए। कभी सख्त हो जाता हूँ, कभी नरम, कभी बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ, तो कभी बिल्कुल अब्बा बन जाता हूँ। सच कहूँ तो जब बच्चे मेरी बात हंसी मजाक में उड़ा देते हैं तो लगता है अब्बा ही दुरुस्त थे। हमारी औलादें हमारी तरफ फर्माबरदार नहीं, और अब्बा की इतनी सख्तियां झेलने के बाद हम अपने बच्चों से थोड़ी तो इज्जत डिजर्व करते हैं। अब्बा का दौर अलग था, हमारा अलग, और उन्होंने अपने दौर से जो सीखा वो हम पर लागू करने की कोशिश की। यही सिचुएशन हमारी और हमारे बच्चों की है। हम कोशिश करते तो हैं वक्त के साथ चलें, हालिया वक्त को मुकद्दम रखें, लेकिन सच तो ये है कि हमारा अपने वालिदैन के रवैये का तजिया तजुर्बा और असर नहीं जाता। हम उसे खुद से अलग रख ही नहीं पाते। साकी भाई पुरसोच से कह रहे थे। हर बच्चे का मिजाज मुख्तलिफ है और हर दौर का माहौल अलग। एक ही कायदा, सेम सा असूल हर बच्चे और हर माहौल में नहीं लगाया जा सकता। हमें बतौर पेरेंट हर लम्हे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और बच्चे के मिजाज के मुताबिक स्ट्रेटजी बदलना भी ज़रूरी होता है। और ये दानाई की बातें मुझे वक्त गुजरने के बाद अब समझ में आई हैं। वो हंस पड़े। साकिब भाई, ये भी तो सच है कि एक वक्त के बाद हम अपने वालिदैन स्पेशली अब्बाओं को बेहतर समझने लगते हैं। यानी जब हम खुद उस मकाम पर पहुंचते हैं और जहाँ 14 तबक रोशन हो जाते हैं वहाँ। शहाब भाई कहते हुए अचानक उसकी तरफ मुड़े। वैसे तुम हमारे तजुर्बों से सीख लो, लेट बाप बनने का फायदा होगा तुम्हें। वो मुस्कुरा दिया। वो सोच रहा था कि क्या आज से 5 साल पहले वो इस मौजू पर बात करते तो उनके ख्यालात ऐसे ही होते? शायद नहीं। हालात के पढ़ाए सबक का दुरुस्त खुलासा एक खास वक्त के बाद ही समझ में आता है। वैसे तुमने क्या सोचा है? अब्बा से बात की तुबा के बारे में? साकिब भाई के अचानक सवाल पर वो सभी ठिठक गए। तलाल की मौजूदगी में उसे बेआरामी से पहलू बदला। तलाल से उसका राब्ता कभी नहीं टूटा था, फिर भी तलाल ने कभी उसे तुबा के नाम की दुहाई नहीं दी थी। उसे उसकी खातिर वापस आने के लिए नहीं कहा था। वो उसका साला बनने के बजाय दोस्त और भाई ही बना रहा था। अभी तक नहीं की। वो तीनों से जवाब तलब नजरों से देख रहे थे। उसे कहना पड़ा। मतलब तुम्हारा इरादा तो है ना? तुमने कुछ और तो नहीं सोच रखा है? शाह भाई ने झिझकते हुए तलाल को देखा। जाहिर है, उसने कहा, और इन तीनों के चेहरों पर सुकून फैला। तुम खुद से नहीं कह पा रहे हो तो कहो, मैं बात करता हूँ। साकिब भाई ने बड़े भाई होने का सबूत दिया। वैसे हैरत है कि अब्बा ने अब तक तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा।
अब तो शाह भाई जैसी हैरत उसे भी होने लगी थी। मैं जल्द अब्बा से खुद ही बात करूंगा, उसे मौजू वहीं खत्म करने के लिए मजबूत लहजे में कहा। उस रात साकिब भाई की बातों ने उसे सोने नहीं दिया। वो बड़े अब्बा के नाश्ते के बर्तन लेकर वापस आई तो होला ने बगौर उसे सर से पैर तक देखा। माना बहुत वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे बालों में सफेदी झलकने लगी हो। इस बेतुकी तमहीद पर उसकी पेशानी नागवारी के इजहार में शिकन जदा हो गई। अब तो कुछ बन सवर के रहा करो, आखिर शोहर है वो तुम्हारा। वो उसकी सादगी पर अक्सर चोट करती रहती थी, लेकिन आज उसके पीछे का मकसद उसे बहुत बुरा लगा। आप मेरी फिक्र छोड़ दें भाभी, और अपने शोहर के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे तय करने दें। उसे गुस्सा छुपाया नहीं था। कमरे में आते आते उसके आंसू गिरने लगे थे अपनी कमसूरती के एहसास के साथ। होला के मशवरे के पीछे छुपी बात उसे अपनी ज़ात की ही तक महसूस हुई थी। वो साफ साफ नहीं कह सकती थी कि उसे अदाओं और दूसरी हथकंडों से रिझाओ कि ऐसे तो तुम में मुतवज्जे करने वाली कोई बात नहीं। उनकी बात का यही मतलब उसके कानों में गूंजा था। उसका सहमा दिल बदी के रवैया और बातों पर खुश होने ही लगा था कि उन्होंने उसके सामने ये आईना रख दिया। मैं उसे नापसंद नहीं। वो आईने के सामने खड़ी बदी की नजरें और बातें याद कर रही थी। शायद इस वक्त मैं उसे अच्छी ना लगती हूँ, लेकिन अब अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं लगती हूँ। उसके दिलो दिमाग यक जुबान कह रहे थे, और खोला की बात से बिगड़ा मिजाज ठीक होने लगा। खोला के बजाय वो अपने दिलो दिमाग की सुनना अक्लमंदी थी। वो बड़ी अम्मी से काम की कोई बात करने बाहर जा रही थी कि पोर्च से आती बदी की आवाज़ पर रुक गई। उसकी दानिश में उसकी अम्मी और बड़ी अम्मी वहां बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। तो बेटा अब अपने अब्बा से बात कर लो, सबने बहुत सब्र किया है। तलाल और मुनीरा ने कभी दबाव नहीं डाला, तकाजा नहीं किया, लेकिन हम मजीद उनका सब्र नहीं आजमा सकते, ये ज्यादती होगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं थी, वो भी बहुत फिक्रमंद थे। लोगों के सवालों का सामना उन्हें भी करना पड़ता था, मगर इस घर के हालात वो समझते हैं। फिर तूबा ने भी शायद उन्हें रोक रखा होगा कि वो इस जिक्र से अपने बड़े अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम वही नौकरी करना चाहते हो करो, मगर अब उसे साथ ले जाओ बेटा, अपना संसार शुरू करो। तुम्हें भी अब खुद को इन नासूदगियों से दूर नहीं रखना चाहिए। वो दम साधे वदी की आवाज़ की मुंतजिर थी कि गेट के बाहर बजे हॉर्न ने उसे मौका नहीं दिया। वदी उठ के गेट खोलने चला गया और वो गहरा सांस भरती वापस आ गई। कमरे में आकर वो बेचैनी से उधर टहलने लगी। उसे फैसला करना था कि वदी को सच बता दे या सच्चाई के बिना ही उसे फैसला करने दे। इतना तो वो जान गई थी कि वो उसे पीछा छुड़ाने नहीं आया, और इस इदराक ने उसके अंदर अपनी खता के एहसास को बढ़ा दिया था। 9 साल पहले का वो फैसला कुन दिन वो कैसे भूल सकती थी, जिसने उन सब की जिंदगियों का रुख मोड़ दिया था। वो बड़े अब्बा से बहस के बाद अपनी फाइलें और फोल्डर्स लिए जाने किस काम से बाहर गया था। घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा और वहशत फैली थी। उससे कबल ऐसी जुर्रत किसी ने नहीं की थी। अब क्या होगा? बहुत देर वो भी सहमी सी अपने कमरे में दुबकी सोचती रही, फिर दबे पांव बाहर निकली ताकि वदी को अपनी तरफ से समझाने का हल करने की कोशिश करे। दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो कमरा खाली था। वो मायूसी बाहर आई कि जीने पर बैठकर उसके आने का इंतजार करेगी। कहाँ चले गए? कब तक आओगे? उससे उसे पैगाम भेजा। जीने के पास पहुंची तो नीचे पड़ी ब्लू रंग की चीज ने उसकी तवज्जो खींच ली। वो उसे उठाकर सीधी हुई ही थी कि आहट पर मुड़ी। बड़े अब्बा ने भी उसके हाथ में पासपोर्ट देख लिया था। उन्होंने हाथ बढ़ाया और तूबा ने उन्हें थमा दिया। उन्होंने खोलकर देखा और अंदर चले गए। हालांकि उन्हें देखकर लग रहा था वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार हुए थे। ये गुस्से और उजरत में घर से निकलते हुए शायद बदी के फोल्डर से गिरा होगा, उसने सोचा और वहीं बैठ गई। उसकी वापसी के इंतजार में शाम का अंधेरा फैलने लगा, लेकिन वो नहीं आया। आखिर बड़ी अम्मी और अम्मी की आवाज़ों पर उसे उठकर अंदर जाना पड़ा। जाने वो कब वापस लौटा था और उसे पासपोर्ट की खबर कब हुई थी, लेकिन रात में बड़े अब्बा ने जो कहा वो सुनकर तो उसके सर पर आसमान गिरा था। पासपोर्ट चाहते हो तो जाने से पहले तूबा से निकाह कर लो। हर कोई इस अनोखी बात पर सकते में था। घर में तलाल और बदी के लिए लड़कियां देखने की बातें होती रहती थीं। हालांकि वो दोनों 3-4 साल तक शादी का इरादा नहीं कह चुके थे। उसे अपनी अम्मी और बड़ी अम्मी की ख्वाहिश की भिनक भी थी, यही उसके दिल की तमन्ना भी, लेकिन ये इस तरह मनवाया जाए वो ऐसा नहीं चाहती थी। बड़े अब्बा का जुमला खत्म होते ही वदी ने इस कदर हैरत, बेयकीनी और जलाल से उसे देखा था कि उसकी हंसी वहीं ढह गई। एक जरा सी आस जो थी वो भी टूट गई। उसे अपने बारे में कोई खुशगुमानी नहीं थी। गोरी चिट्टी शक्लों वाले खानदान की वो वाहिद सांवली लड़की थी। नकुश आम से हो तो गोरी रंगत पर उसे भी हसीनों में शुमार कर लिया जाता है, पर यहाँ तो सूरत भी आम से थी और रंगत भी। बड़ी अम्मी अम्मी खोला और नाहिद भाभी सभी उजली गुलाबी जिल्द की मालिक थी। ऐसे में वदी का उसे इस हैसियत से नापसंद करना बड़ी आम सी और मुमकिन बात थी। एक दिन बाद की उसकी टिकट थी। वो यहाँ नौकरी से इस्तीफा देकर बैरून मुल्क में 3 साल का मुआहदा कबूल कर चुका था। उसे बाला ही बाला सब कुछ तय करके आखिरी वक्त घर में इतला दी थी। फिर भी बड़े अब्बा ने उसके लिए कोई राह नहीं छोड़ी थी। आखिर पासपोर्ट की बाजियाबी के लिए उसे सबके सामने उसे बतौर मंकूहा कबूल कर लिया था और वो टूट फूट गई। वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन
अब वो उसे नफ़रत करता था, उसका पछतावा कोई नहीं जानता था, वो आज़ाद होना चाहता था और उसने उसे पिछली क़ैद से बड़ी जेल में डाल दिया था। काश वो पासपोर्ट ना उठाती, उठा लिया तो छुपा लेती, बड़े अब्बा को ना देती। वो कितने दिन दिल थामे इंतज़ार में रही कि अब उसे तलाक भेजी कि जब भेजी। लेकिन जब महीनों गुज़र गए, तो उसे यकीन हो गया कि बड़ी अम्मी ने उसे मज़ीद कोई कसम देकर रोक रखा है और वो मज़ीद मलाल में गिर गई कि उसके साथ हर कोई जबर और ज़बरदस्ती ही कर रहा था। होला भाभी अलग उसे बार-बार एहसास दिलाती रहती कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। आम हालात में इस बेजोड़ रिश्ते पर वो कभी मान ही नहीं सकता था। उल्टे-सीधे दलाइल और नए-नए नुक्ते उठाकर खौफ दिलाकर उसे अम्मी और बड़ी अम्मी को रोके रखा था कि उसकी शादी रुखसती को लेकर वदी पर कोई दबाव ना डाला जाए, ना तकाज़ा किया जाए। लेकिन बड़ी अम्मी कुछ वक़्त ही उसकी बात मान सकीं। वो और साकिब भाई ही थे, जो उसे तूबा को साथ ले जाने का कहते थे, उससे उस मौज़ू पर बात करते थे। वो हर बार हाँ, आऊँगा इतना कहता था और उन्हें यही इत्मीनान हो जाता कि कम से कम वो ये रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं करता है, जिस साबित कदमी से वो बाहर रह रहा था। इस बात ने भी उन सबको मोहतात कर दिया था। सबके दिलों में डर था कि उसे मज़ीद कोई ज़िद ना दिलाई जाए। दूसरे वक़्त के साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ीं तो दोनों भाई मसरूफ़ भी ज़्यादा हो गए थे, खुद अपने बच्चों में उलझ के रह गए थे। बड़े अब्बा को यकीन था वो साल 2 साल या अपना मुआहदा ख़त्म होने पर तो वापस आ ही जाएगा, ताहम गुज़रते वक़्त ने उन्हें इस उसकी ज़िद का एहसास कराया। उनकी मानकर वो उन्हें ही सज़ा दे गया था। इस इंकशाफ़ ने उन्हें तोड़ के रख दिया था। तौबा की ज़िंदगी की वीरानी भी उनकी वजह से थी। उस पर वो साबिर बच्ची ना आह करती थी, ना उफ़। उसकी ताबेदारी और मोहब्बत ने उन्हें और झुका दिया। उन्होंने तो ये सोचा था कि निकाह करके वो उसकी वापसी यकीनी बना रहे हैं। उनकी शर्त ने 2 ज़िंदगियाँ वीरान कर दी थीं। ये एहसास जुर्म उन्हें सर ता पा बदल गया था। उन्होंने साकिब और शहाब के बच्चों के मामलात से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था। क्या मैंने ज़िंदगी में बच्चों पर सिर्फ़ ज़ुल्म और सख्तियाँ ही की हैं? मैंने उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया? रातों को नींद नहीं आती तो वो बीवी से पूछती और वो उठ के बैठ जाती। आपने वो सब किया है जिसकी वजह से आज आपके बच्चे खुद मुख्तार और कामयाब हैं, माशरे में इज़्ज़त और मकाम रखते हैं। आज नहीं तो कल बच्चे भी समझ जाएँगे, आप ऐसा ना सोचा करें। वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती और वो अफ़सुर्दगी से मुस्कुरा देते कि वो उन्हें बहला रही हैं। वो कमरे से बाहर निकली तो फैसला कर चुकी थी। दस्तक सुनकर वो वदी ने अंदर आने की इजाज़त देने के बजाय उठ के दरवाज़ा खोला और सामने तूबा को देखकर वाज़े हैरान हुआ। मुझे कुछ बात करनी है, अंदर आ जाऊँ? उसका सवाल उसकी यहाँ मौजूदगी से ज़्यादा अचंभे वाला था। उसने दरवाज़े से हटकर उसे अंदर आने की जगह दी। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा, तो वो कमरे के वसत में खड़ी सरापा इज़्ज़राब और इज़्ज़रार थी। वदी उसे खुद को वक़्त नहीं दिया, मुबादा इरादा बदल ही ना जाए और बिना किसी तमहीद के कहना शुरू किया। उस दिन तुम्हारा पासपोर्ट मुझे ज़ीने पर पड़ा मिला था और मैंने ही वो बड़े अब्बा को दिया था। अगर उस वक़्त मैंने तुम्हें वो वापस कर दिया होता, कहीं छुपा दिया होता या बड़े अब्बा के माँगने पर उन्हें इनकार कर देती, तो वो सब ना होता। बड़े अब्बा तुम्हें निकाह के लिए मजबूर ना करते और ना तुम्हें इतने साल परदेस में गुज़ारना पड़ते। मुझे उस वक़्त भी इस बात का बहुत अफ़सोस और दुःख था, आज भी है कि तुम्हें अपना ख़्वाब पूरा करने के लिए इस तरह ब्लैकमेल होना पड़ा। तुम्हें ज़बरदस्ती एक अनचाहे और नापसंदीदा रिश्ते में बंधना पड़ा और फिर उससे बचने के लिए तुम्हें सबसे दूर रहना पड़ा और अब फिर तुम्हें हर कोई प्रेशराइज़ और ब्लैकमेल कर रहा है। उन सब की वजह मैं हूँ, ना मैं वो पासपोर्ट बड़े अब्बा को देती, ना जिस तेज़ी से वो बोल रही थी, उसी रफ़्तार से उसके आँसू भी गिर रहे थे। पासपोर्ट वाली बात उसके लिए नई ज़रूर थी, लेकिन अब वो बात अहम नहीं रही थी। तूबा उसे पास आकर उसे शानों से थाम कर रोका। इन सब की ज़िम्मेदार तुम नहीं हो। वो और तेज़ी से रोने लगी। तुम गुस्सा करोगे, मुझे बुरा-भला कहोगे, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने गर्दन हल्की सी खम करके इल्तिजाइया अंदाज़ में कहा और रोते हुए मुस्कुराई। मुझे कभी तुम पर गुस्सा नहीं आया तूबा। उसने गिरफ्त मज़बूत करते हुए उसे हल्के से झिंझोड़ा। तुम इतने वक़्त से ये सब सोचती रही हो। उसकी आवाज़ ताज्जुब से लबरेज़ थी। मैं तुमसे या इस रिश्ते से बचने के लिए सबसे दूर नहीं था। उसने एक हाथ शाने से हटाकर उसके आंसू साफ किए। फिर 9 साल तक तुम आए क्यों नहीं वदी? उसने आंसू पर काबू पाते हुए पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें पहले मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं क्या सोच कर गया था। उसने दूसरा हाथ भी उसके शाने से हटाया और थोड़ा पीछे होकर गहरी सांस ली। तुम क्या सोच कर गए थे वदी? तुबा ने पहले सवाल के अंदाज में ही पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों गया था? तुम्हें तो हर हाल में जाना था, जिसके लिए तुमने बड़े अब्बा की शर्त भी मंजूर कर ली थी। तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिश बाहर जाना थी, वो पूरी हो गई तो? नहीं तूबा, वो तड़प के आगे आया। मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्वाब तुम थी, जिसे अब्बा ने मुझसे छीन लिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अब्बा मुझे जाने देते, कुछ वक्त बाद मुझे वापस आ ही जाना था, लेकिन वो कैसे मुझे मेरी पसंद और मर्जी से कुछ करने दे सकते थे? उन्होंने सारी उम्र हमें गुलामों की तरह अपनी मर्जी पर नचाया। उन्हें हमारी डोर हिलाने और हमें उसी के मुताबिक हरकत करते देखने की आदत थी। उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगियों पर इख्तियार सिर्फ़ उनका था। पता नहीं उन्होंने ये जानबूझकर किया था या अनजाने में कि मेरी ख़्वाहिश को उन्होंने मेरी अपनी ज़िद बना लिया।
انہوں نے مجھے اپنی مرضی کرنے کی سزا دینے، اپنے آگے جھکانے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ میں نکاح سے انکار کر کے باہر نہ جاتا تو وہ جیت جاتے، اور نکاح کر کے باہر جاتا تو بھی ان کی شرط مان کر انہیں جتا دیتا۔ ہر حال میں جیت ان کی تھی، اور یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میں انہیں شکست دینا چاہتا تھا، ایسی کہ سارے بدلے پورے ہو جاتے۔ میں انہیں جتانا چاہتا تھا کہ وہ ہر بار اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہر بار انہیں ان کی پسند کے نتائج نہیں مل سکتے۔ ان کی ساری جوڑ توڑ ناکام بھی ہو سکتی ہے، ان کی حکم عدولی بھی ہو سکتی ہے، ان کے منصوبے فیل بھی ہو سکتے ہیں، جبر کا انجام ساری عمر کا پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں ودی میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ بڑے ابا کی چہیتی ہونے کی سزا مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی ان کی بات مان لینے پر زندہ درگور ہو جانا چاہیے۔ ودی کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی دفعہ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ نہیں توبہ، وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں رہا۔ میں خود کو سولی پر لٹکائے بنا انہیں ہرا نہیں سکتا تھا۔ انہیں غلطیوں کا احساس ہو، اس لیے ضروری تھا کہ میں یہ دکھ، یہ ہجر سہتا۔ اور اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو میرا احساس کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ دکھ تمہارا اکیلے کا تھا؟ سولی پر صرف تم لٹکے تھے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا مجھے اس سزا میں شامل ہونا بھی ہے یا نہیں؟ میں یہ دکھ اٹھانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ مجھے اتنے سالوں کی دوری منظور ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح رونے لگی، اور ودی کو یقین نہیں آیا۔ ایسی حیرانی تھی کہ پل بھر کو سے گویائی ہی چھن گئی۔ تم خود کو سزا دے رہے تھے، بڑے ابا کو شکست، اور میں، میری حیثیت، میری فیلنگز، میری مرضی۔ ودی نے خود پر قابو پا کر اس کے ہاتھوں میں لیے۔ سودی توبہ، ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے سر جھکا کر ان پر ماتھا ٹکایا۔ اس کے انداز میں ندامت اور تڑپ تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس پروسیس میں تمہیں اتنا ہرٹ کر رہا ہوں۔ اسے واقعی اس انکشاف نے ہلا دیا تھا۔ دونوں کے مفروضے غلط تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس بات پر اس لمحہ خوش کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنے لیے یہ سزا چنی تھی۔ میں یہاں آنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے اپنی بات منوا کر یہ رشتہ ختم کرنے کا نہ کہہ دو، یا ابا ہی میری حرکت پر مجھے تم سے الگ ہونے کا حکم نہ صادر کر دیں، اور تم اپنے بڑے ابا کی بات ایک بار پھر مان جاؤ۔ تم پاگل ہو ودی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم ایک لڑکی سے نکاح کر کے اسے 9 سال تک پلٹ کر نہ دیکھو اور سوچو کہ یہ صرف تمہارے لیے سزا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، وہ بھی اس وقت جب تمہیں اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے؟ اسے ودی کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے سینے پر مارا۔ ودی نے اسے سنبھالنے سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن توبہ زخمی اور بفری تھی۔ اسے یہ اعتراف، یہ اظہار سنبھل نہیں رہا تھا۔ اسے اب تک اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا یہ جان کر آیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار اس سے دور تھا۔ اسے اب اپنے اتنے سالوں کے غم اور پچھتاوے کا غصہ بھی اس پر آ رہا تھا۔ تم سے بڑا بے وقوف اور خود غرض اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسے پوری قوت لگا کے خود کو اسے دور کیا۔ میں اب تک یہی سوچتی رہی کہ تمہیں میں پسند نہیں تھی، اور بڑے ابا نے زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا۔ اس بات پر تم ناراض ہو، اس بات پر تمہارا نہ آنا مجھے قبول بھی تھا، لیکن تم سے محبت کے باوجود، مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کے باوجود، محض اپنی ضد اور انا کی خاطر 9 برس گوا کے آئے ہو، وہ بھی اپنے بوڑھے، بیمار اور پیار کرنے والے باپ کو سبق سکھانے، سزا دینے، اور اب چاہتے ہو میں تمہاری محبت کا یقین کر لوں؟ اسے دریا بنے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کاش تم نہ آتے ودی، تم جاؤ واپس، اور اب کبھی مت آنا۔ وہ جانے لگی۔ توبہ اسے سامنے آ کر راستہ روکا۔ آئی ایم ریئلی سوری، تم میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پاس سے نکل کر جانے لگی تھی کہ اسے بازو پکڑ کر روکا۔ سب کچھ تو سن لیا، اور کیا رہ گیا ہے سننے کے لیے؟ اسے بازو چھڑایا۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، یہی سمجھو تم کہ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا تاکہ یہ رشتہ ختم کر سکوں۔ ختم کر دیا، اب جاؤ۔ اسے ودی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں گھر میں سب سے بات کر لوں گی، تم اپنی ریٹرن ٹکٹ بک کروا لو۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کیا۔ ودی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہنسے روئے اس کے پیچھے جا کر اسے منائے یا یہیں بیٹھ کر ماتم کرے۔ صبح وہ دیر سے جاگی، اور اس کے بعد بھی سستی سے بستر پر پڑی رہی۔ جب باہر کا شور کم ہوا اور چائے کی طلب نے ناراض ہو کے دب دب کرتے ہوئے سر کا رخ کیا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آئی۔ وہ جو شور کم ہونے پر سمجھ رہی تھی سب ناشتے سے فارغ ہو کر کام کاج پر نکل گئے ہیں اور بقیہ کمروں میں بند ہیں۔ بڑے ابا کے کمرے کا کھلا دروازہ اور اندر ٹھوس کر بھرے سارے افراد کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس اجتماع پر غور کرتے ہوئے خیال آیا کہ کہیں بڑے ابا کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو، اور وہ تیزی سے بھاگنے کے ارادے سے پلٹی ہی تھی کہ ہولا سے ٹکرا گئی۔ توبہ، انہوں نے سر سہلایا۔ کہاں جانے کی جلدی ہے اب تمہیں؟ وہ بڑے ابا، دل تو کر رہا تھا انہیں ہاتھ سے ایک طرف دھکا دے کر بھاگے، لیکن ہولا کے ساتھ تحمل کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہاں، بڑے ابا ہی پلان بنا رہے ہیں سارے، اب بھی آخر تمہاری اور اس گھر کی، مطلب ان کی اولاد کی ہری شادی ہے۔ وہ فوراً اپنے تاثرات چھپانے کے لیے پلٹ کر چائے کپ میں نکالنے لگی۔ اس کا پارا ایک دم آسمان چھو گیا تھا۔ ویسے امید نہیں تھی مجھے ودی خود سے بات کرے گا اور بڑے ابا بلا چون چرا مان جائیں گے۔ ذرا باقی سب کی بھی چائے بنا لو، میں تب تک آپ خود بنا لیں، میرے سر میں درد ہے۔ اس کا دماغ ایسے گھوما تھا کہ وہ ان سے روا رکھا جانے والا تحمل، عادت سب بھول کر ہکا بکا کھڑی ہولا کو دیکھے بنا اپنا کپ لیے کمرے میں آ گئی۔
इस चालाकी ने उसे मजीद भड़का दिया था। गुस्से ने वाकई उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। जहन माऊफ था। वो बस बेइंतहा गुस्से में थी और बहुत कुछ करने की ख्वाहिश में पागल हो रही थी। जरा देर बाद ख्याल आया कि मजलिस बर्खास्त होते ही अम्मी और बड़ी अम्मी इधर आएंगी तो वो संभल गई। जाके मुंह धोया, हुलिया दुरुस्त किया और आईने के सामने आई तो चेहरा देखते ही वदी के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्वाब तुम थी। उसे सर झटका। 9 साल वो इस बेवकूफ़ी, इस जुल्म को हजम नहीं कर पा रही थी। बड़े अब्बा से वदी को इतनी नफरत थी, कहीं से उड़ता उड़ता आया ख्याल जहन पर साया फिगन हो गया। मोहब्बत इतनी कमज़ोर और नफरत ऐसी ताकतवर। वो आईने में खुद के अक्स से बातें करने लगी। नहीं, नफरत तो नहीं, ये जिद थी, जिद और बड़े अब्बा को गलत साबित करने का जुनून। लेकिन बड़े अब्बा ये तो डिजर्व नहीं करते। अफसोस फिर गुस्से में ढल गया। उस नालायक ने क्यों नहीं समझा। एन तवक्को के मुताबिक ज़रा देर बाद अम्मी उसके कमरे में आई। अगले इतवार को तकरीब थी और उसके बाद वदी के साथ उसकी रवानगी। उनके पीछे बड़ी अम्मी भी चली आई और वो सादतमंद और मिसाली बेटी की तरह गुस्से से झुके सर को शर्म से झुका सर जताती उनकी सुनती रही। उसे शर्म के पीछे छुप के सारा दिन कमरे में बंद रहने का बहाना मिल गया था। अगले दिन सुबह ही सुबह उसे पता चला उन दोनों का अपॉइंटमेंट है मैरिज मैरिज रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, जो उसके वीज़ा की दरख्वास्त के लिए अहम और ज़रूरी था। साथ ही उसे बताया गया कि जल्द ही उसे वीज़ा के लिए वदी के साथ एम्बेसी भी जाना है और वो तिलमिला के रह गई। क्या साकिब भाई क्या साकिब भाई बड़ी अम्मी या वदी अम्मी अम्मी ने वदी के साथ पहले ही सब तय कर लिया था? ये सब रातों रात तो नहीं हो सकता था। उसे जाने के लिए तैयार होना पड़ा। वो जो वदी से कह दिया था और उस वक़्त जितना भी गुस्सा था वो ये घर में किसी को नहीं बता सकती थी। अबाया पहनने से पहले सोचा कि बड़े अब्बा की दोपहर की दवाइयाँ निकाल कर रख आए। अध खुले दरवाजे को हाथ बढ़ा के पूरा खोलती उसे कबल साकिब भाई की आवाज़ पर रुक गई। डिपेंडेंट वीज़ा इतनी जल्दी शायद ना मिले, इसलिए इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा पर ही जाएगी। अच्छा, बड़े अब्बा की नहीब सी आवाज़ सोच के वज़न से भारी महसूस हो रही थी। वदी बेटा, तुम्हारी मुझसे जो नाराज़गी और गुस्सा है उसे तूबा पर। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ अब्बा, ना मुझे किसी पर गुस्सा है। उसने ये मुश्किल बात बमुश्किल कह डाली। अब्बा, साकिब भाई ने वदी के शाने पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा दिया। आपका सख्त मिजाज कभी हमें ग्रां गुजरता था। उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब गुस्सा नाराज़ी जैसी कोई बात नहीं है। वदी ने इतना वक्त क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं आया? इन सब पर अब बात बात करें ना ही गौर तो बेहतर होगा। औलाद को वालिदैन की बेगर्ज मोहब्बत और नीयत का यकीन आ जाए तो फिर पहाड़ जैसे शिकवे शिकायतें भी पसे पुश्त पर चले जाते हैं। और साकिब भाई इस मकाम पर पहुंच गए थे जहां उनके पास ये यकीन था। अब्बा, वो साकिब भाई का हाथ आहिस्तगी से हटाकर उनके करीब फर्श पर बैठ गया। मैं अपने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस आने वाला था और उस वक्त आप मुझे तूबा से शादी का कहते तो मैं खुशी खुशी मान जाता कि तूबा मुझे उस वक्त भी पसंद थी, लेकिन उस वक्त शादी की शर्त मुझे जिद दिला गई थी। आई नो, मैंने गलत समझा और उसके बाद भी गलत किया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। उसे लगने लगा था कि अब्बा को भी एहसास है कि उनका रवैया गलत और ज़रूरत से ज़्यादा सख्त था, जिसने बच्चों पर बुरा असर डाला, और अब वही ये बात जताकर उन्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। उसने उनके कमज़ोर से हाथ पर अपना हाथ रखा। आप मेरी सारी बदतमीज़ियों, नादानियों और बेवकूफ़ियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। उनका तनतना और उनकी हुकूमत को सरनिगूं देखने की शदीद ख्वाहिश के होते हुए भी उसे बीमार और लाहिर बाप को देखकर रत्ती बराबर खुशी नहीं हुई थी। बड़े अब्बा ने डुबडुबाई आंखों से उसके सर पर हाथ रखा। जीते रहो बेटा। वो मज़ीद कुछ कह रहे थे, लेकिन वो वापस कमरे में आ गई। जाने उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन वो अपने बड़े अब्बा को बच्चों से माफ़ी मांगते नहीं देख सकती थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। यही सब बहुत पहले भी हो सकता था। ये दुनिया कब की सिमट जाती अगर वो पहले आ जाता। अगर तुम पहले मैसेज कर देती। अंदर से आवाज़ आई। वो साकिब भाई के साथ उनकी कार में रजिस्ट्रार के दफ्तर आए थे। वहां से वापसी पर जब वो वदी के साथ बाहर आई तो साकिब भाई का कहीं पता नहीं था। मामला समझते ही उसे दाईं तरफ से आ रहे रिक्शा को रोकने के लिए आगे जाकर हाथ उठाया ही था कि वदी ने पीछे से लपक कर उसका हाथ नीचे किया। साकिब भाई किसी काम से गए हैं, तब तक हम बात कर लें। वो जताते हुए मुस्कुराया। ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ हो सकती है, मगर घर में नहीं। दूसरे, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना सुनना। उसे अपना हाथ छुड़ाया। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर खड़े हम लड़ रहे हैं, और तुम्हें पता है दो इंसानों के मैरिड होने का सबूत लड़ाई से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। उमला भेंचे चुप रही। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हें कहाँ के समोसे अच्छे लगते हैं। कुछ देर उसके तने से चेहरे को देखते रहने के बाद वदी ने अफसोस से कहा, कहीं के पसंद भी होते तो मैं ना उनके लिए जान दे सकती हूँ, ना कुछ मान सकती हूँ। उसकी बात का मतलब समझते ही उसे तुनक कर कहा, जान तो तुम्हारी मुझे भी अजीज है, बस मानोगी कैसे ये बता दो। वो करीब हुआ और वो दूर। तुम किसी खुशफहमी में मत रहो। मैं सिर्फ ये बड़े अब्बा की वजह से चुप हूँ, और तुम्हारी ये हरकतें मेरे गुस्से को मजीद हवा दे रही हैं। शुक्रिया। उसे एहतराम से सर खम किया। बस कौन सी हरकतें गुस्सा दिला रही हैं, उनकी निशानदेही कर दो। ये जो तुम फजूल हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो वो, और याद रखो, जुबानी मोहब्बत के दावे मुझे इंप्रेस नहीं करते। खुद को इस जोम से बाहर निकालो। 9 साल से जो तुम कर रहे थे वो मोहब्बत हरगिज नहीं थी।
रिक्शा उसे बर वक्त आवाज़ दी थी। रिक्शा उसके सामने आन रुका। अंदर बैठते ही उसे कहा, चलो भैया। उसने चलो भैया कहा तो वो होश में आकर रिक्शा में सवार हुआ, वरना तूबा का इरादा उसे छोड़कर निकल जाने का था। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने मीटर गिराते हुए पूछा। तूबा ने मोहल्ले का नाम बताया। जरा लंबे रास्ते से ले चलना भैया। वदी ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर इल्तिजा की। ड्राइवर की बतीसी बाहर उबल पड़ी। सख्त तासुरात के साथ बेनियाजी से बाहर देखती लड़की और गाहे बगाहे उस पर निगाह डालता मिस्कीन सा लड़का। देखें भैया, जहाँ लब होता है वहीं लड़ाई भी। ड्राइवर की मालूमात के मुताबिक उस जगह से रिक्शा में सवार होने वाले जोड़े कोर्ट कोर्ट मैरिज को केसेस ही होते थे। सो उसने अपनी दानिश में शुगल शुरू किया। लेकिन भाभी, पहले ही दिन आपको थोड़ी तो रियायत करना चाहिए। साइड में रोको रिक्शा अभी। तूबा ने पर्स का गिरता स्ट्रैप शाने पर डालते हुए कहा। अरे आप तो, वो खिसियानी सी हंसी हंसा। रोको अब के उसने उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे रफ्तार कम करते हुए रिक्शा सड़क के किनारे लगा दिया। सॉरी, उसने पीछे ड्राइवर को पैसे पकड़ाते हुए वदी से कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर को उससे हमदर्दी महसूस हुई। वदी उसके पीछे लपका। जो अब उबर बुक करने के लिए फ़ोन में ऐप खोल रही थी। तूबा उसे उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। तुम अभी मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करके आई हो और मुझसे बात नहीं करना चाहती? उससे बड़े प्यार से पूछा। तुमने सबको इतनी कड़ी और लंबी सजा दी है कि अब मेरे पास अपने किसी फैसले से उन्हें फिर दुखी करने का इख्तियार भी नहीं रहा। तूबा ने उतनी ही बेरुखी से जवाब दिया। मुझे उसका अफसोस है। मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे मौका दो। मौका क्यों? तुम्हें अपनी खताओं का बदला नहीं चाहिए, जैसा तुम बड़े अब्बा से लेना चाहते थे? मैंने कब रोका? तुम बदला बदला ही ले लो। तो फिर अगले 9 बरस तुम मेरी जिद भुगतो। यार वो कराहा, मैं जान और मान गया हूँ, जिद बहुत बुरी चीज़ है। और तुम इतनी जालिम नहीं हो, मेरे तो बाल भी सब। वो एकदम रुक गया। वो जो कहने जा रहा था वो उसे इस वक्त सोचना चाहिए था, जब 9 साल आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर जिंदगी मुख्तसर कर रहे थे। बहुत साहता हिजर खत्म होने के बाद ज्यादा तकलीफ देता। तुबा की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए उसने चेहरा एक तरफ कर लिया। वो फोन जेब में डालता आगे आया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या ज़रूरी है मेरे जैसी नादानी तुम भी करो? 9 साल की तलाफी के लिए एक एक लम्हा कीमती है, और जानती हो तुम्हारी नाराज़गी हमारा कितना कीमती वक्त छीन रही है। यानी कसूर अब भी तुम्हारा नहीं है? उसे रोते हुए खफगी से कहा। सारे कसूर, सारी गलतियां मेरी हैं, बस तुम मान जाओ और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी करीब से उभरे तेज हॉर्न पर दोनों हड़बड़ा गए। साकिब भाई गाड़ी में उन्हें देख रहे थे। वो सुर्ख हो गई। यकीनन 9 साल लंबा वक्त है। उन्होंने सर हिलाया। लेकिन हाथी निकल गया है तो तुम के लिए क्यों बेसब्रे हो रहे हो? घर में तो सबके ही मिजाज शो हो रहे थे। बेसब्री का ताना तो जिंदगी भर मुझे कोई नहीं दे सकता। उसे फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ाई। बस थोड़ी प्राइवेसी दरकार है, जो घर में मुयस्सर नहीं। उसे तुबा का हाथ पकड़ा। इसलिए आप जाएं, घर हम पहुंच जाएंगे। क्यों तुबा? उसने उसे देखकर ताई चाही। उसे गुस्से के इजहार में हाथ छुड़ा के साकिब भाई की कार में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वो हाथ छुड़ा नहीं पाई और सर झुका दिया। साकिब भाई ने हंसते हुए गाड़ी घर की सिमत मोड़ दी और वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ा। रिवायत तो मुंह मीठा करने वाली है, मगर मौका शर्मा जी के समोसों की ट्रीट का है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मान गई हूँ, उसे साथ चलते हुए जताया। मैंने नोट कर लिया कि तुम मानी नहीं हो। उसे चलते चलते अपना वो हाथ ऊंचा किया जिसमें उसका हाथ जकड़ रखा था। ये इसलिए कि 9 साल बाद तुम कहीं रास्ता न भटक जाओ। उसने आंख से हाथ की सिमत इशारा किया। एहतियातन दूसरा हाथ भी दे दो। वो रुक कर उसके सामने आया। ये लंदन नहीं है जहाँ रास्तों पर रोमांस होता है। आसपास से गुजरने वाले उन्हें घूरे जा रहे थे। तुम्हारा मतलब है ये रोमांस हो रहा है? नहीं, रुको, मतलब तुम्हारी रोमांटिक एक्सपेक्टेशन बस इतनी है? उसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में दबा उसका हाथ ऊंचा किया। तुमने तो 9 साल में बड़ी तरक्की कर ली है। उसने आंखें छोटी करके चबा चबा के कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें 9 दिन में सिखा दूंगा। उसने शरारत से एक आंख दबाई और वो हाथ छुड़ा के आगे बढ़ गई। वधी हंसते हुए उसके पीछे लपका। अब ये एक दूसरे के आगे पीछे चलने, भागने, लपकने और फिर कदम मिलाने की मुशक्कत उम्र भर की थी।